financial fraud category of National Cyber Crime Reporting Portal from January 21 to November 30, 2022 was 8,84,000. So this is the volume of cyber crime we are facing today in this world. The most fatal crime which are reported in the world is, on the first category it is terrorism, on second it is narcotics and drugs, and on the third it comes cyber crime. साइबर क्राइम वो क्राइम है जो हमें सामने से तो नहीं दिखता है। आप टेररिस्ट को देख सकते हैं, वो गन लेके आओ, टेररिस्ट देख सकते हैं, नार्कोटिक्स देख सकते हैं, लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो हमें दिखता नहीं है, तो इससे हमें बच के रहना है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड for 560 million internet users, which is ranked only behind China. And in the upcoming days, we will be leading in this online market. तो आप सोच रहे होंगे कि साइबर क्राइम का हम सीए से क्या रिलेशन है और आज हमने ये प्रोग्राम क्यों आयोजित करा है रिगार्डिंग द साइबर क्राइम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सेना के वीरों की तरह हम बॉर्डर पे तो खड़े होकर नहीं हो सकते, लेकिन साइबर क्राइम से जो जनरेटेड फंड्स है वो टेररिस्ट को जा रहा है, और अपन देश के योगदान में ये कर सकते हैं कि वो टेररिस्ट की फंडिंग अपन कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ वेरी प्रोमिनेंट स्पीकर है रक्षित टंडन जी। आई वुड रिक्वेस्ट, ही इज जस्ट कमिंग। रक्षित टंडन सर के बारे में अगर बताऊं तो डॉक्टर रक्षित टंडन सर is a cyber security evangelist, national cyber security expert, and crime investigator on cyber forensics and ethical hacking for various law enforcement agencies in India. He has 2 decades of expertise in cyber security. He is highly concerned about cyber hygiene of children, particularly those aged to 10 to 18 years. Over the last 2 decades, he has made it his mission and has reached out over 50 lakh youngsters across the country. मेरी चर्चा हो रही थी सर से आज सुबह, तो सर का एक मिशन है कि हर स्कूल में जाके साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, क्योंकि इस साइबर क्राइम का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसमें भी बहुत जगह हो रहा है आजकल, जो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पबजी गेम्स है और जो चाइना के बने हुए जो गेम्स है वो सब इसी मोटिव पे ऑपरेट करते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर सके। सो हिज मिशन इज टू एजुकेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. He is regularly invited by schools and colleges to conduct cyber security and hygiene sessions, also known as safe surfing. In addition, he was a key contributor to UNICEF study on child online protection in India. Dr. Tandon is key resource person and visiting faculty member at Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India for cyber crime investigations and training of law enforcement officers across the country. He is currently appointed by Haryana Police Department as a consultant CID to assist in the investigation of cyber crimes. He has been key in establishment of cyber cells for various state police departments and worked closely with the training their personnel on the complexity of cyber crimes investigations. He has played a vital role in the resolution of some of the most serious cybercrime cases for various police departments around the country. Dr. Tandon has received honorary membership of Indian Police Foundation and also is working as a mentor and coordinator to various cyber crimes, cyber security internship program. A huge round of applause for Dr. Tandon. And he is also giving training. He has already trained 17 states police department, as I told you. So over to you, sir. Thank you so much. It's an honor. Thank you so much for having me. I'm coming pre-COVID. I was there. We were in a very huge conference by Indore Chartered Accountant branch. I remember coming here. So coming after a long time. Thank you so much. Thank you, Chetan sir. It was very insightful. And the best part was to engage the audience so well. तो अब पता नहीं लंच के बाद और वो जैसे सर कह रहे थे ना मास्टर स्ट्रोक तो इन्होंने मार दिया, तो मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट बहुत वैसा है, मतलब
लोग मुझे बुला लेते हैं बट नेगेटिविटी बहुत रह जाती है, मतलब बाहर निकलने के बाद लोग कहते हैं मोबाइल छोड़ दो। क्योंकि अभी मैं एक खबर पढ़ रहा हूँ, आप लोग के साथ बैठा होते हैं, मेरे पास अपडेट्स आते रहते हैं पुलिस से, तो अभी खबर है कि रशिया के अंदर आईफोन बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका उसको स्पाई करता है सिरी के थ्रू, वो सुनता है सारी बातें। और बात सच है, सुनता है वो, मतलब आप लोगों के पास भी होगा एलेक्सा आईफोन। तो नाउ साइबर इज गोइंग टू न्यू टैंजेंट ऑल टुगेदर। मतलब अगर आप लोगों ने जानता हो, देखा हो, यू रिमेम्बर कि वो कितना आसान था ना, फोन किया, मैं राहुल शर्मा बोल रहा हूँ एसबीआई से, केवाईसी करनी है, और लोग सोचते भी नहीं थे कि उनका एसबीआई में खाता ही नहीं है, फिर भी वो जवाब दे देते उसको, ओटीपी बता दो, ये बता दो। नाउ इट हैज गॉन टू अ डिफरेंट टैंजेंट टू गेट इनटू योर डिवाइस, टू गेट इनटू योर डिवाइस। अभी सर ने, मौसम सर ने शुरुआत करी थी, तो मैं उसी को प्रूफ किए देता हूँ। अभी मेरे पास ये केस आ गया। ये पहला केस है। अभी 5 करोड़ रुपए एक आदमी के लूटे गए हैं, उसके फ्रेंड का फेक वीडियो बना के, उसकी वॉइस, उसका फेस। मैं अभी आप लोगों को सबको सिखा दूंगा, तो कल सुबह एसपी इंदौर परेशान हो जाएंगे, रोज या केसेस आने लगेंगे कि मैं आपको, चित्र जी को वीडियो कॉल करूंगा फ्रॉम मौसम फेस एंड वॉइस। वीडियो कॉल होगी, वो फेस टाइम कॉल होगी या जूम कॉल होगी, उसमें इनका चेहरा दिख रहा होगा, और वो आपके चेहरे है, तो आप उनको पूरी रिस्पेक्ट देके ट्रस्ट भी कर लोगे। ये घटना घट गई। एक अभी एक केस आया है जिसके अंदर एक आदमी ने 5 करोड़ रुपए अपने दोस्त को दे दिए, बिकॉज वो वीडियो तो था, और वीडियो कॉल जो किया गया था वो उसके दोस्त का ही फेस था और उसी की आवाज थी। हम लोगों ने इसको नाम दिया है डीप फेक। जब आपको टाइम मिले तो आपको बहुत सारे इसके वीडियोस मिल जाएंगे डीप फेक के नाम से। ये डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग की मदद से, जिसमें हम किसी की भी आवाज और किसी के भी वीडियो को मैनिपुलेट करके काम कर सकते हैं। तो क्राइम इज रीचिंग अ न्यू टेंजेंट ऑल टुगेदर। And when it comes to chartered accountants, so I have a very long association. 2000 में मेरे को फैकल्टी बना दिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वो पढ़ाने जाता था मैं आईटी, IT1, IT2, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और हमारा एक छोटा सा काम था उस समय, हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट में हूँ 94 से। पुलिस में आया सन 2004 में, पहला साइबर सेल उत्तर प्रदेश का स्थापित किया। और 2008 से मैं आने लगा पीआरटीएस इंदौर में, वरुण कपूर साहब के साथ बहुत काम किया है मैंने, बहुत लेक्चर्स दिए हैं। फिर मैं बुरारी चला गया, जो पुलिस अकेडमी है भोपाल में, वहां बहुत काम किया है मैंने। और फिर अब तो खैर मैं 17 राज्यों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मजे की बात ये है कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ रहा होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कॉन्फ्रेंस में मेरे को बच्चे जो आईटी वाले जो बुलाते हैं हैकर्स, वो कहते हैं दीप शुभकामा आ गए हमारे आईटी में। सो आई एम जस्ट 27-year-old स्टूडेंट। I have done some good work in the sense for children and for the police. I've been specially appointed by CID now, and I'm working with some very serious operations, which I can't tell because record कर रहे हैं. But मेरा अब मेजर फुटप्रिंटिंग है, डिजिटल फुटप्रिंटिंग एंड फोरेंसिक्स इज माय कोर फोकस। बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तो करीब 6 लाख बच्चों से बात कर चुका हूँ। सॉरी 60 लाख, 55.6 मिलियन, 60 लाख हो गए करीब। अभी आ रहा हूँ 5 तारीख को, दिल्ली कॉलेज ने हमें इन्वाइट किया, दोबारा से बुलाया बच्चों से बात करने के लिए। मैं 5 को फिर आ रहा हूँ इंदौर। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरा हिंदुस्तान कवर किया है, और बच्चे मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये डराते बहुत है मेरे को। अभी मेरे यहाँ गाजियाबाद में एक केस आया, और एक व्यापारी आके रो रहे हैं कि साहब मेरा सारा कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, 10 करोड़ की फिरौती मांग रहा है, सारे फोन हैक कर लिए मेरे। तो हमने विवेचना करी, इन्वेस्टिगेट किया, तो देखा उन्हीं का 11 साल का बच्चा निकला, 5वीं कक्षा का। और मम्मी ने उसको पैदा होते ही यूट्यूब दे दिया था, जैसे आजकल की माएँ दे देती हैं। तो ये देखिए, पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा है, 11वीं कक्षा के बच्चे ने अपने पिताजी को 10 करोड़ के लिए ब्लैकमेल किया, और वो यूट्यूब पे लगातार वीडियो देखता था। तो आज मेरे बच्चों की जो डिजिटल डाइट है वो इतनी खराब हो गई है, और माँ बाप को पता ही नहीं, प्राउडली और कहते हैं अंग्रेजी में, माई चाइल्ड इज अ प्रो। इस कार्यक्रम में गए, मम्मी पापा साथ बैठे थे, तो मम्मी बैठी, मैंने माई चाइल्ड इज अ प्रो, मैंने अच्छा ही इज इन 4th स्टैंडर्ड, 9 years old। मैंने विच गेम डज ही प्ले, तो बच्चा बोला सीओडी। तो हम बोले कैश ऑन डिलीवरी, बोला नहीं सर, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो मैं फौरन उसी के सामने, मदर के सामने, मैंने प्ले स्टोर खोला यहाँ पे। आई सेड आई वाज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि मेरा जहां तक ज्ञान है कि ये गेम 9 साल के बच्चों के लिए ठीक नहीं होना चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर पे COD लिखा, बच्चा बोला हाँ सर यही गेम है। तो इसमें नीचे हमने पढ़ा तो एज रेटिंग लिखी थी, तो मम्मी से कहा, मैंने मुबारक हो बच्चा बड़ा हो गया। तो मैंने मम्मी से कहा घर जाके इसका अकाउंट शादी.com से बना देना, बाले का बधूले आएगा तुम्हारे लिए। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। Will you allow any content which is 18 plus to be delivered to a child of 9 years or 10 years old? So this is a challenge I am facing। और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 3 दिन पुरानी घटना है। मैं ट्रैवल कर रहा था, एक बहुत बड़े IT के प्रोफेसर ने हमें कांटेक्ट किया और बड़े शर्मसार हो रहे थे बात करने में शुरू में। He is a professor in IT in a very very famous university in the country, and his 13-year-old son, he drained out 3.5 lakh rupees from her mother's mobile through UPI on a game called Free Fire। क्या नाम है गेम का? और ये तो चलो बेटा 3 दिन पहले की घटना है, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको क्योंकि इसमें मेरे FIR दर्ज है। ये मेरे रिटायर्ड आर्मी जवान है जिनके सिर्फ 36 लाख रुपए निकले। बच्चा PUBG खेल रहा था और खेलते खेलते उसने 36 लाख से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स खरीदे गेम की लास्ट स्टेज पे जाने के लिए। So I hope I am trying to make my point that why it is very important talking to children। अब भूल जाओ चिल्ड्रन, अपनी बात करते हैं। आप तो बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, तुम फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, तुम्हारे पास सारे क्लाइंट्स का फाइनेंशियल डेटा रहता है, यस और नो? तो देखो भाई, सबसे पहली शिकायत सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं होनी चाहिए। मल्टी वेंडर सिस्टम खत्म करो। अगर टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है अपने सिस्टम में तो वो भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अब वो टाइम गया, आज से 20 साल पहले डरते थे MS ऑफिस, यार 12 कंप्यूटर है, 40,000 का आता है, कितने का? तो खरीदते थे नहीं, वो नेहरू प्लेस से CD आती थी, उसी को कॉपी कर लेते थे, यस और नो? सॉरी, टुडे इट्स नॉट दैट, एंड इट्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS कहते हैं उसको। टुडे यू ऑल कैन अफोर्ड a Microsoft official version for what? 360 rupees a month. Is it too much? मुझे वो टाइम भी याद है जब मैं टैली का एडवाइजर बना था। हिंदुस्तान में टैली आया था, भरत गोविंदा लेके आए थे, टैली 4.5 आता था। 100 में से 99 लोगों का पायरेटेड होता था फ्लॉपी वाला। फिर जब 7.2 तक आए, जब वो डोंगल का आ गया वो का, तो वो मैंने तोड़ लिया। और वो बड़े दुखी होते थे ये टैली वाले। फिर उन्होंने अपनी प्राइसेस कट डाउन करी, फिर वो CS मीट करनी शुरू करी, सब CS को बुलाते थे, उनको इनेबलर बनाया कि भैया अपने क्लाइंट का ओरिजिनल लगवाओ, तुम्हारे यहाँ फ्री में दे देंगे। याद है वो फ्री पैकेज दिए थे ऑडिटर्स को। कहने का मतलब ये था, आज इसकी क्या अहमियत है मेरी बात समझना। अगर आपका फ्रेमवर्क जेन्युइन नहीं है तो यू आर एट हाई रिस्क। और हाई रिस्क कितना रिस्क है मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ। Have you heard incidents happened with All India Institute of Medical Sciences? क्या हुआ था उनका? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा हुआ था। उनके सारे सर्वर से सारा डेटा चुरा के उसको लॉक कर दिया और सिर्फ 200 करोड़ की फिरौती मांगी। 15 दिन तक एम्स बंद रहा, 15 दिन तक एम्स की वर्किंग बंद रही। पूरा नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशन था और उनके कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं थे। आप लोगों ने देखा हो, पता नहीं आप में से कितने लोग हैं एप्पल यूज करते हैं। आपको पता है 3 दिन पहले क्रिटिकल अपडेट आया एप्पल का और हाई सिक्योरिटी अलर्ट आया। कितनों ने कर लिया अपना एप्पल अपडेट? थैंक यू, थैंक यू। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने वार्निंग दी है, 0 डे अटैक पाया गया। 0 डे हमारी भाषा में क्या कहते हैं कि बिना किसी लिंक को क्लिक के घुस जाऊंगा तुम्हारे एप्पल में, बिना किसी लिंक को क्लिक, उसे 0 डे कहते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्निंग मैंने परसों 2 दिन पहले 3 बजे उठ के रात को मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच तीनों अपडेट किए, फिर मैं दोबारा सोया। दैट वाज हाई इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू कैन इमेजिन। तो अगस्त में भारत सरकार ने वार्निंग दी थी कुछ, ये देखिए, और ये अगस्त से देनी शुरू करी। पहली वार्निंग आई 21 अगस्त को। क्या था वार्निंग में? गूगल क्रोम। अच्छा, कोई ऐसा है यार जो गूगल क्रोम यूज नहीं करता हो? आप नहीं करते? कौन सा? बड़े दोस्त का नाम बोला, ब्रेव बहुत अच्छा है वो। बहुत बढ़िया है। चलिए, क्रोम तो यूज करते हैं सब। 21 अगस्त 2022, 28 नवंबर 2022, 2 मार्च
2023 तक वार्निंग आनी है कि अपने गूगल क्रोम को क्या रखो अपडेटेड। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू तो तुम इंटरनेट में जाते हो, उसी पे खोलते हो तुम नेट बैंकिंग, उसी पे खोलते हो अपना mca.gov.in, उसी पे लॉग इन करते हो, उसी पे जीएसटी भेजते हो, उसी पे इनकम टैक्स की सबमिशन करते हो। किस पे? क्रोम। और अगर क्रोम अपडेटेड नहीं है तो उसका क्या मतलब है? उसमें छेद है, और छेद में कौन घुसता है? हैकर। और सुनो भाई, हैकर ये नहीं कहता नहीं मैं सीओ को टच नहीं करूंगा। आई एम सॉरी बट 31 मार्च से पहले मेरे पास कम से कम 10, पूरे हिंदुस्तान से 10 से 15 केस आए एक हफ्ते के अंदर। क्या हुआ? रैंसमवेयर अटैक हुआ। क्या हुआ? सारे का सारा डेटा लॉग और सब चीज हो रही है। एक सीए का फोन आया, फिर भी मैं बजाऊंगा, मेरे 100-1500 का क्लाइंट है, उनका सबका डेटा इसमें, मुझे बैलेंस शीट देनी है, मैंने बैकअप नहीं। बोले हाँ बैकअप है, मेरी जान में जा रही है, मैंने चलो कहाँ है बैकअप? बोले इसी में डी ड्राइव में है। और जब उन्होंने ये बात लाइव बोली ना, बोले सर 4 साल पहले हमारे इंस्टीट्यूट आए थे। मैंने तुमने सुना नहीं। अगर हमने सुन लिया होता तो ये नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 21 सितंबर 2022 था या 21 का, मुझे डेट याद नहीं, दिखाता हूँ। आप लोगों का इंदौर इज अ वेरी रिच प्लेस इन एजुकेशन में, काफी यहाँ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, स्टेज है और लोग बहुत बुलाते रहते हैं। ऐसे ही एक हमारा उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में केएन मोदी ग्रुप है। 8 कॉलेजेस हैं उनके। कितने? फाउंडेशन है, 8 कॉलेजेस हैं। ये सब पढ़ाते बीटेक, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएड, एमबीए के बहुत सारे कॉलेज। बड़े बढ़िया सुंदर बने हुए, जैसे आपके यहाँ यूथ में ना ताजमहल, ग्लेज ग्लेज बढ़िया वाली बिल्डिंग। 8 कॉलेजेस, 12,000 बच्चा होगा। कितना? अच्छा, आज का जमाना कौन सा है? एडमिशन ऑनलाइन, फीस ऑनलाइन, करिकुलम ऑनलाइन, सैलरी स्टाफ को ऑनलाइन, सारा डेटा ऑनलाइन है। एक रात को कोई गड़बड़ होती है और नीचे बंद करो, आवाज आ रही है। 8 कॉलेजेस का डेटा है, एक भी वैल्यू होती है, और हैकर सिर्फ 8 करोड़ रुपए मांगता है उनसे। कितना मांगता है? 8 करोड़। सारी फाइलें इनक्रिप्ट हो गई। ये वायरस सबसे खतरनाक है, इसने अमेरिका तक को हिला दिया, अमेरिका की गैस पाइपलाइन बंद कर दी। उनको $4.4 मिलियन देकर छुड़ाना पड़ा। कितने? हमारे भारत देश को लॉक किया था इन्होंने। हमारा एक छोटा सा वो है एक सर्वर, उसको लॉक किया था इन्होंने डिब्रूगढ़ में, ऑयल इंडिया लिमिटेड के। 57 करोड़ की चुनौती मांगी थी उनसे। कितनी? 1 रुपया नहीं दिया हमने, और हम वापस आ गए। और अमेरिका ने $4.4 बिलियन दिए, और जब वो नहीं देते तो उनकी ऑयल और गैस सप्लाई क्या हो जाती? जीरो हो जाती, जीरो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अभी एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। रशियन हैकर्स ने यूरोपियन बैंक के पूरे मैकेनिज्म को फेल कर दिया है, और ये कहते हुए फेल किया है कि तुम लोग यूक्रेन का साथ दे रहे हो इसलिए। अब आप सोचो, अगर ईआईबी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को बंद कर दिया जाए हैकर्स द्वारा, साइबर अटैक कर दिया जाए, तो क्या पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है? जवाब दो। तो हम उस बॉम्ब पे बैठे, साइबर वॉर कहते हैं इसको। तो मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा, मैं तो ये छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मालिक है, 8 कॉलेजेस का मालिक है, और उनके आईटी एक्सपर्ट काम करते, उसका हमारे पास फोन आया, पुलिस का हमारे पास फोन आया, हमसे मदद मांगी, हमका बैकअप, बोले बैकअप उसी सर्वर में था। तो साइबर सिक्योरिटी को जब तक आप प्रोएक्टिवली नहीं लोगे ना, तो आप सीरियस हो गई। और स्थिति अब इस समय ये है कि ये स्थिति है आपकी, कि अगर एक फाइल गलत खुल गई सिस्टम पे, तुम खोलो या तुम्हारा आदमी खोले या तुम्हारा आर्टिकल खोले, खत्म। और 90% सीएस जो अटैक हुए हुए क्यों हुए थे? जब ये रैंसमवेयर वाले हुए। रिमोट शेयरिंग ऐप यूज करते हैं साहब हम लोग, एमी एडमिन, एमी डेव, टीम व्यूअर। हाँ, बड़ी सहूलियत है साहब। क्लाइंट का बेटा है, वो वहां बैठा है मुरैना में, हम का बेटे इंदौर में, हमने यहीं से उसके डिजिटल सिग्नेचर लेके अपलोड कर दिया। हाँ या ना? थर्ड पार्टी है यार वो। You are going through a third party server and that server was infected. सबसे ज्यादा अटैक इसीलिए हुए थे क्योंकि हम लोग रिमोट एक्सेस के थ्रू काम कर रहे थे। और रिमोट एक्सेस जब आप करते हो तो अपने घर का वो दरवाजा खोल देते हो जिससे कोई भी हो सकता है। हमारी टेक्निकल भाषा में आरडीपी कहते हैं उसको, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। और अगर वो खुला हुआ है आपके सिस्टम में, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आपको मोबाइल और डेस्कटॉप पे घुस सकता हूँ। आई एम गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो प्लीज आज की तारीख में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सैनिटाइज करिए। और कैसे सैनिटाइज होगा? मेरे सारे या तो विंडोज छोड़ो, विंडोज अगर नहीं खरीद सकते विंडोज तो फेंको सिस्टम और यूनिक्स लेके आओ, फ्री में मिलती है। ट्राई को कौन कहता है एमएस ऑफिस यूज करो? लाइनेक्स यूज करो, लाइनेक्स का ओपन ऑफिस यूज करो। वो मत, और नहीं आता है किसी को यूज करना, भूल जाओ।
गूगल डॉक यूज करो, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तुम लोग एक ही बैलेंस शीट को, एक ही एक्सेल फाइल को 10 बार अपडेट करके 10 बार अटैच करके भेजते हो। तुम कितना जीबी डेटा वेस्ट करते हो। मैं क्या रहा हूं, एक एक्सेल शीट तुमने बनी गूगल एक शीट पे, उसके राइट अपने क्लाइंट को दिए और अकाउंटेंट को दिए, दोनों देख रहे हैं, दोनों वही बैठे अपनी एडिटिंग कर रहे हो, तुम मास्टर हो, तुम अप्रूव कर रहे हो। तो क्या कोई फाइल का आदान प्रदान हो रहा है? नहीं। अटैचमेंट बढ़ रहे? नहीं। मेल डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही? नहीं। फाइल चोरी होने का डर? नहीं। और गूगल डॉक और गूगल शीट और गूगल स्लाइड चलाने के लिए ना तो तुम्हें वर्ड चाहिए, ना एक्सेल चाहिए, ना पावर पॉइंट चाहिए, यानी कि हार्ड डिस्क पे बिल्कुल भी जगह खराब नहीं करनी है। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन ऑफ पॉजिटिव टेक्नोलॉजी। अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ओरिजिनल रखो। तो कंप्यूटर का ड्राइवर कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिक्योरिटी गार्ड कौन होता है? एंटीवायरस। दोनों लाइसेंस और शरीफ होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम नेहरू प्लेस, एंटीवायरस फ्री कॉपी डाउनलोड टुडे। तो भैया तो तुम्हारा ड्राइवर कौन? आईएसआई का आदमी, और वो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड कौन? बोले लादेन ने भेजा है। अब तुम कहां सुरक्षित हो भाई? So don't compromise on operating system and antiviruses and software as a service stack यूज करो। बट यस, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो हम घटना बता रहे थे, वो ये रही आपकी आंखों के सामने। इनके सारे सर्वर बंद कर दिए और हमसे 57 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और आजकल ये सारी फिरौतियां जो मांगी जाती है, दिस इज ऑल इन बिटकॉइन, सो दैट नो ट्रेस, नो ट्रेसेबिलिटी। डेबिट कार्ड ट्रेस हो जाएगा, बैंक का खाता ट्रेस कर लोगे, कितना ही नकली क्यों ना हो, एटीएम तक पहुंच जाएंगे हम। बिटकॉइन में कुछ नहीं मिल रहा, तुमको पता ही नहीं चल रहा कौन से एड्रेस पे गया, कौन निकाल के ले गया। तो आज सबसे बड़ा खतरा यही हमारे लिए है। और ये सारे क्राइम्स जो है, ये डार्क वेब क्राइम्स है। तो मैंने 1998 में जब अपनी करियर शुरू किया साइबर में, तो मैंने नैपी में देखा था साइबर क्राइम को, छोटा सा बेबी था। आज जब मैं देखता हूँ साइबर क्राइम, मुझे थैनोस दिखाई देता है, रावण दिखाई देता है, 10 सिर वाला। सीरियसली, मतलब इट इज इवॉल्व। और इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं लाइव दूंगा, मैं आपका फोन खोल के दिखाऊंगा यार। हाँ प्लीज, कभी मजा आएगा नहीं तो तुम समझोगे नहीं साइबर सिक्योरिटी किसका खोलना है, बस ये बता दो। इनका तो ठीक है, चेयरमैन साहब का फोन गंगा, इनकी ईमेल आईडी बताओ चेयरमैन साहब। अच्छा, ऐसे नहीं समझाऊंगा। अब से कितने लोग हैं जो एक अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करके बैठे हुए हैं? जोमेटो, वेरी गुड। बिग बास्केट, ओके। अब से कितने लोग हैं जिन्होंने डोमिनोज से पिज्जा खाया है? आपने, आपके बच्चों ने, घर वालों ने? ठीक है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो डोमिनोज से शुरू करते हैं। ये देखिएगा, अरे वो मुझे मत समझाओ, अभी ये खाता हूँ मैं। अलग अलग मैं भी रखता हूँ, सुनो ये है कि नहीं हुआ आज तक। और चोरी नहीं हुआ, 3 बार छोड़ा है, वापस ढूंढ के देख आया है। तो गरीब आदमी है, इसको ले आओ। ये है मेरा सबसे सेफ फोन, ये और ये तो कोई भी खोल के बैठ सकता है। खैर, डोमिनोज के 18 करोड़ डेटा चोरी। कितना? तो आपने जितने पिज्जा खाया है, कितने रुपए का खाया है, किससे पेमेंट करी है, और किन किन एड्रेसेस पे मंगाया है, वो सारे एड्रेस आएंगे। जहां जहां ऑर्डर करते हैं ना, होम डिलीवरी, सारे एड्रेसेस। समझो भाई, सारे। हाँ हाँ। बिग बास्केट का नाम सुने? बिग बास्केट के 2 करोड़ का डेटा चोरी हिंदुस्तानी का, और ये डार्क वेब पे बेचा गया। अभी परसों हमने 17-18 साल के 2 बच्चे पकड़े बिहार से, उन्होंने कोविन ऐप का डेटा लीक कर दिया था आपका टेलीग्राम पे, पकड़ लिया उनको। वो तो बात की बात है, पकड़ लिया, लेकिन डेटा गया। तुम लोगों का सब कोविन का डेटा गया। ये किसका गया? ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? 17 मिलियन डेटा चोरी। और सुनो, इस नदी की बात पढ़ो। इस डेटा में 2 चीजें चोरी हुई, तुम्हारा ईमेल और पासवर्ड। पहला सवाल आप सब लोगों से, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, डू वी कीप ऑल पासवर्ड सेम? डू वी मोस्टली कीप ऑल पासवर्ड सेम? थैंक यू। सुनो, डकैती का बड़ी जोमेटो पे डेटा और पासवर्ड किसके चोरी हुए? जोमेटो के। हमारा जोमेटो का और ईमेल का पासवर्ड सेम था।
तो क्या मैं ईमेल से फोन में घुस सकता हूँ? कैसे? वो गर्दन आ रहे मैम, आप कैसे घुसेंगे बताओ जरा। हाँ आप पिंक वाले, हाँ बताओ। हाँ तो हमें तो उससे फोन में कैसे घुसेगी? ईमेल अलग चीज होती है, फोन अलग। इसे क्या बोलते हैं? नहीं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, दिस इज एंड्रॉइड, दिस इज एप्पल. You can't start an Android phone without a Gmail ID. Yes or no? Yes. You can't start an Apple phone without an Apple ID. Yes or no? And the moment you put in this ID, automatic cloud is created. Yes or no? And whatever I do on this, it mirrors into my cloud. It mirrors. Backup नहीं होता. Mirror होता, mirror. तूने यह नंबर सेव किया, क्लाउड पे गया. फोटो खींची, सेल्फी, क्लाउड पे गई. और अगर मेरे को तुम्हारे क्लाउड का पासवर्ड पता है तो क्या मैं तुम पे जासूसी कर सकता हूँ? हाँ भाई, एग्री? You know what is the biggest crime today we are facing? The hacker wants to get into your device. कल हम आपकी की कॉन्फ्रेंस थी, आईटी एंड टेक्नोलॉजीज, आईसीएआई. आपके चेयरमैन वो हैं अनिकेत, आए हुए थे. हाँ, उसको मुलाकात हुई कल अहमदाबाद. तो ये इत्तेफाक हो गया कि दोनों ने हमें एक साथ इनवाइट किया. एक ने 23 को, एक ने 24 को. तो हम 23 कल वहां थे. तो वहां हम जब बात कर रहे थे तो एक सीए साहब आए हमारे सेशन के बाद. बोले सर हमारे एक क्लाइंट है, आपसे मिलना चाहते हैं. 80 लाख रुपए गए उनके. कितने? 80 लाख. रात का टाइम था, हमने कह दिया आप होटल पे भेज दीजिए क्योंकि मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी. उन्होंने सुबह 3 बजे उठाया हमको. हम 3 बजे से काम कर रहे हैं. उसके बाद हम महाकाल दर्शन कराया. बहुत बढ़िया, हमसे भाई में मजा आ गया. ऐसे दर्शन हमने कभी नहीं किए लाइफ में, बिल्कुल वीआईपी. और इसीलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं. और उसके बाद हम जैसे ही पहुंचे, हमने कहा आओ 12 बजे आए, थोड़ा आराम कर ले. तो मैसेज आ गया कि आप लंच कर लो, फिर गाड़ी आ रही. 1:30 बजे गाड़ी आ रही थी. तो खैर मजा आ गया, बहुत अच्छा था दोनों दिन. तो 80 लाख रुपए चले गए उनसे. तो वो आए रात को होटल पे हमसे क्लाइंट मिलने. He's from Ahmedabad, he's a businessman. तो he was also a victim of data breach only. वो मैं कैसे हुआ है, आपको वही केस दिखाता हूँ, बट हम ये लाइव दिखाता हूँ मैं आपको. ये बात समझ में आ गई कि आजकल डेटा पे बहुत डकैती पड़ रही है. और आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा है डेटा इज द न्यू गोल्ड, डेटा इज द न्यू ऑयल. आप सबके पास क्लाइंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है. यस और नो? आपके पास एक और चीज भी रहती है क्लाइंट की, डिजिटल सिग्नेचर. पासवर्ड के साथ एनवेलप पे लिखा होता है पासवर्ड, ऊपर रखो अलमारी में. अरे टिकट हुए पारामा एनवेलप आया ना. एक ये भग गए थे मेरे पास, बहुत बड़ा केस हुआ था, उनको वारंट आ गया था आंध्र प्रदेश पुलिस का. क्यों? क्योंकि किसी बदमाश ने उनके डिजिटल सिग्नेचर को मिसयूज करके एक एनबीएफसी फर्जी कंपनी बनाई और 4 करोड़ का उसके अंदर फ्रॉड किया. उस पर नॉन अवेलेबल वारंट आया, उसने सारा ठीक करा, अपने सीए पे फोन किया. और सीए साहब को पुलिस ने तो इंक्वायरी में बुला लिया. सीए की तो हालत खराब हो, घबरा गए बेचारे. मेरे पास आए, मैंने बॉस तुम्हारे पास है बोले ना. और सुनो उनकी कितनी इंटेलिजेंस बात. 15 क्लाइंट की डिजिटल सिग्नेचर उनके पास. और चूंकि 15 क्लाइंट को बार बार फोन करो, चिट्ठी बड़ी दिक्कत होती है. उन्होंने अपना ही नंबर सब में डाल दिया और अपनी एक ईमेल क्रिएट करके सब में डाल दी. तो 15 क्लाइंट में ईमेल किसकी बनी हुई है? और सुनो, आप सीए हो, आपको ये नहीं पता आपका क्लाइंट करता क्या है, सही काम या. तो अगर मैं गलत काम करूंगा और जब इन्वेस्टिगेशन होगा फाइलिंग का, तो आईपी एड्रेस सीए साहब का, ईमेल आईडी सीए साहब की, फोन नंबर सीए साहब का. हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिजिटल एविडेंस. क्या कहते हैं? हाँ सुनो तो क्या कहते हैं. हाँ पुलिस वाले आगे कहते हैं आओ चलो. कोई नहीं पूछते कौन हो, एफसीए पीसीए कुछ नहीं पूछेगा वो लोग फिर आगे ले जाते हैं. आई स्वेयर ये गलती किसकी है? हमारी है. क्या हमें ऐसे डिजिटल सिग्नेचर्स रखने चाहिए? चलो आप ऑथेंटिक हो, आप जेन्युइन हो, आपके क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट है. Every day you are intaking new young generation people coming in and moving out your office as interns, articles, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप. How can you take the responsibility of everyone, right? Yes or no? Is it safe? Is it safe to use your email and all the clients? I hope my point is taken. साइबर सिक्योरिटी सिर्फ उसी से नहीं होती. मैंने तो फायरवॉल लगाई, दरवाजे बायोमेट्रिक लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं होता. अंगूठा लगाया मेरा. फेविकॉल से बनते हैं अंगूठे आजकल. कहाँ यूट्यूब चलाता सीखा तुमने? अरे यार वो यूट्यूब देखा तो भी. अरे तुम्हें नहीं पता
हद हो गई। ये देखो, ये हद हो गई। हाउ टू क्लोन फिंगरप्रिंट। और कौन सी भाषा यहाँ पे, कौन सी, हमको इंदौर में ना, हाँ, गुजराती की जरूरत नहीं है, लो भैया सिखा रहे हैं, छोटा सा बच्चा सिखा रहा है। अभिषेक बच्चन ब्लू वाला फिंगरप्रिंट यूज करके सेंसर पे लगा के गेट को अनलॉक कर सोचे ऐसे ही हम फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर को ब्लू वाला फिंगरप्रिंट यूज करके फोन को अनलॉक कर सकते हैं। And the best part is it has millions of likes and followers. ये कितने हैं इसके? मिलियंस होंगे। ये लोग डिजिटली फिंगरप्रिंट्स बनाना सिखा रहे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच वीडियोस। आई एम गेटिंग माय पॉइंट? इज द पॉइंट टेकन? तो बॉस लिसन, साइबर सिक्योरिटी ये वास्ट वाली नहीं। माइक नहीं, वो माइक वहां नहीं, वो माइक हम जूम से कनेक्टेड है। तो मेरा पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो मेरा पहला थ्रेट है डेटा ब्रीच। तो आप लोगों की एक सेंसिटिव चीज होनी चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ योर क्लाइंट्स। ये जो फालतू सीडीज बनाना, पीडीज को तो बैन कर दो अपने आप, नो पीडीज। यू शुड हैव अ जीरो पीडी एनवायरनमेंट। और नहीं, एक हार्डवेयर वाले बोला सारी यूएसबी के तार कटवा दो अंदर से। कोई पीडी समझिए क्या होता है? पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव, यू वांट टू ट्रांसफर डेटा, पुट इट ऑन योर क्लाउड। आपका क्लाउड, तुम क्लाइंट क्या जा रहे हो, तुमने अपने इंटर्न से कहा ये चारों फाइल तैयार है, मेरे क्लाउड पर डाल दो। ड्राइव किसी कहते गूगल ड्राइव। वहां गए, अपनी ड्राइव से उसको शेयर किया, क्लाइंट को दिखाया डेटा आपकी ड्राइव पे, और आपको लग रहा है क्लाइंट को नहीं दिखाना है, शेयरिंग हटा दो। शेयरिंग हटा दो। गूगल ड्राइव सीखा आप लोगों ने, बहुत अच्छी चीज है। बट मैं पेन ड्राइव लेके नहीं बोलता हूँ। नो, पेन ड्राइव आर ससेप्टेबल टू अटैक्स। दे आर ससेप्टेबल टू अटैक्स एंड डेटा थेफ्ट आल्सो। डेटा थेफ्ट क्या? आपका कोई बहुत सीरियस मैटर है और कोई ले गया पीडी में और पता चला किसी को दे दिया गलत जगह, जस्ट फॉर सम ड्राइव और समथिंग, सो इट कैन बी अ लॉस। तो एक ये चीज, और दूसरा कैसे चेक करेंगे? तो अपने हमने इतने सारे आपको तमाशे दिखाए, बिग बास्केट, जोमेटो गया, डोमिनो गया, आप सब तो यूज करते हो, यस और नो? तो हाउ डू आई चेक वेदर आई एम सेफ और नॉट? तो मैं आपको एक टूल सिखा देता हूँ। ये टूल है हमारा एक छोटा सा। इससे क्या होता है, आप इसमें बस अपना ईमेल आईडी डालो। तो बताओ किसका फोन खोलना है यहाँ पे, कौन खोलवा रहा है? अमितेश भाई अपनी ईमेल आईडी बताओ। अमितेश जैन। अमितेश, एक मिनट, हाँ, अमितेश जैन 1403 देखिए अमितेश भाई का डेटा क्या कहता है। भाई मुबारक को 4 बार डेटा चोरी हुआ है तुम्हारा। कितनी बार? इनका डेटा 4 डकैतियों में पकड़ा गया है। देखिए कब कब? अक्टूबर 2020 में बिग बास्केट पे डकैती पड़ी। उसमें अंग्रेजी में क्या लिखा है, क्या किया गया इनका? ये पढ़ो, ये क्या लिखा है। अब नीचे आओ, दूसरा ऐप कौन सा है? कैनवा का नाम सुने आप लोग? कैनवा का 2019 में डकैती पड़ी थी। ईमेल, लोकेशन, नाम और तीसरा, ये तो बेकार है। चौथा पढ़ो, ये तो सभी लोग यूज करते हैं, पीडीएफ कन्वर्टर, ईमेल और आई टेक 3 सेकेंड्स और मैं आपको अभी अमितेश भाई का पासवर्ड दिखा सकता हूँ। हाँ सीरियसली। और मेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर अमितेश भाई ने इन तीनों घटनाओं के बाद अपना पासवर्ड चेंज, तो मैं अभी इनका फोन खोलूंगा आपके सामने, स्क्रीन पे खोलूंगा फोन। अरे लोग तो खोलने दो। अरे तो समझ में आया? अब मैं औरों का चेक नहीं करूंगा, आप खुद अपना चेक करेंगे। कैसे? ये वेबसाइट खोलो, haveibeenporn.com, क्या नाम है? haveibeenpwned.com खोलो और अपना मेल आईडी डालो। कोई यहाँ बैठा है याहू वाला पुराना आदमी? मैम जरा बताएंगे प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज बताओ। है BANITA राठी, क्योंकि याहू वालों को बहुत जगह बड़ी बड़ी पड़ी है। कितने? 10। इनका तो पासवर्ड दिख सकता है बहुत आराम से।
Kite.com अगस्त 2014 से शुरू हुई है इनकी डकैतियां, देखना कब तक हुई है। अगस्त 2014 में कोई वेबसाइट यूज करती थी डाइट और न्यूट्रिशन की। इवन इनकी ईटिंग हैबिट बता सकता हूं मैं आपको। ठीक है, मेरे पॉइंट को समझो। ये डेटा क्या है? ये सोना है, सोना। अभी तक हम वनिता जी को नहीं जानते, मैं नहीं जानता, सिर्फ नाम पता चला मुझे। अब मुझे क्या क्या पता चल सकता है? I can know her eating habits, her date of birth, email address, name, password, physical attributes जो उन्होंने डाले होंगे टाइपिंग करते समय। अब नीचे आओ, ये कौन सी वेबसाइट है? एग्जैक्टली, इंडिया मार्ट, लिंक्डइन। ये तो बहुत गंदी वेबसाइट है बॉस। इसके जब डेटा ब्रीच हुआ था शीन का, इसमें पासवर्ड दिखता है। सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सीखो, अच्छा लगेगा सुन के। अभी जितनी कंपनियां हैं लेटेस्ट, उनमें पासवर्ड हैश होता है। क्या होता है? उसे कहते हैं इंक्रिप्टेड। ये पुरानी कंपनियां हैं बेकार बेकार चाइना की, उनके पासवर्ड टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट। So the funny part is, I don't remember using these. So ma'am, I tell you what Yahoo बदमाशी did. आपने अभी एक नया ट्रेंड देखा है कि जब भी कहीं साइन अप करो कैप्चा कोड मांगता है। पहले क्यों नहीं था ये कैप्चा कोड? क्योंकि ये हैकर्स ईमेल से साइन अप करते थे। क्यों? तुम लोगों को फ्रॉड एनालिसिस का बहुत शौक है ना? एक नया फ्रॉड सुन लो जो तुम लोगों को बहुत बम्बार्ड करने वाला है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्टअप। क्या कहते हैं? मेरे दो बच्चों ने ऐप बनाया, उसे कहते हैं VC फंडिंग। उसने अपनी कंपनी दिखाई 100 करोड़ की, 10% इक्विटी थी, 1 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए 10%। उसके बाद 100 करोड़ कैसे दिखाई? उसने सारे लोगों के ईमेल एड्रेस से अपनी आईडी पे साइन अप करा दिया। दिखा रहा मेरे पे कितने कंज्यूमर है? 1 मिलियन। एक की तो वैल्यू अच्छी होती है, वो एक्चुअल कंज्यूमर नहीं है, इन्फ्लेटेड वैल्यू है। अब अपने प्रोग्रामर को लगाया और 10,000 1 करोड़ साइट पे साइन अप करा दिया। जैसे मैं कह रही हूँ क्योंकि आज भी मैंने ये सब चलाया है कि नहीं चलाया होगा, आई एग्री, बट डेटा तो गया ना। उसके बाद नई कंपनी को 10% और इक्विटी दे दी, तब वैल्यूएशन क्या दिखाई? 200 करोड़। तो जिसने शुरू में 10 करोड़ लगाए थे वो एक के कितने लेके निकल गया? 2 करोड़ वो निकल गया। कंपनी कितने हो गई? आज जो बाइजू के साथ हो रहा है ना, अभी देखना और आगे कितने पत्ते खोलेंगे। तो बी वेरी केयरफुल। कैश रिच नहीं है कंपनी, कैश बर्न नहीं हो रहा है, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग विद फिगर्स। And I'm sorry, they are using and misusing chartered accountants also in this to show those inflated values. और बाहर से इन्वेस्टर से पैसा लाते हैं, पिच डेक करते हैं और अच्छा बोलते हैं। तो खैर ये तो बात अलग हो गई, लेकिन ये समझ में आ गई कहानी। अब मैं जो करूंगा वो लाइव करूंगा। मैं और किसी के साथ नहीं कर सकता, इलीगल है। मैं अपना करूंगा cyberexpert10@gmail.com। मैंने अपनी ईमेल चेक करी, मेरी ईमेल है ये कह रहा है मेरा 2 बार डाटा चोरी हुआ है। मैंने बताओ कब कब हुआ है? कैनवा और आदित्य बिरला। कैनवा मैं भी यूज करता हूँ, सब यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। आदित्य बिरला फैशन एक स्टोर है जिससे हम सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये इनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। 54 लाख लोगों का डेटा चोरी हुआ था। इस डेटा में मेरा क्या चोरी हुआ था? पासवर्ड। अब आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इमेजिन करो मेरा पासवर्ड आदित्य बिरला का और जीमेल का क्या है? सेम है। तो कैन द हैकर गेट इनटू माय फोन? वो घुस गया, एक बटन दबाया। इसको कहते हैं गूगल क्लाउड। क्या कहते हैं इसको? अब क्या देख सकता है वो मेरा? क्या? मैप्स। मैप्स में क्या दिखेगा? टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्या दिखेगा? ये 23 तारीख को क्या कर रहे थे और 24 को क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या दिखाता है। अपने इससे का दिखाओ 23। ये तो सारी लाल बिंदियां दिखा रहा है कि तुमने पूरे हिंदुस्तान में कहां भ्रमण किया है। मैंने ये बताओ 23 को मैं क्या कर रहा था? मतलब 23 तारीख को ये नोएडा से निकले 7 बजे, ये पहुंचे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहां पे बैठे 7:54 से 8:58 तक। वहां से उड़ गए, ये पहुंचे अहमदाबाद, वहां से पहुंचे फेयरफील्ड बाय मैरियट, फिर ये मैरियट पे ही रहे। अच्छा साहब 24 को क्या किया इन्होंने? 24 को ये मैरियट से निकले 3:25 पे। ये सरदार वल्लभ भाई पहुंच गए एयरपोर्ट अहमदाबाद 4 बजे तक। फिर ये पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट 6:20 से 6:34 तक। उसके बाद ये बीच में मिसिंग आ गया, ये पहुंच गए इंदौर मैरियट होटल, वहां पे रहे 8 बजे तक। फिर ये चले गए उज्जैन, ये वहां रहे 10 बजे तक। फिर ये वहां से आए मेघदूत रेस्टोरेंट में पोहा खाया। ये देखो 10:23 से 10:35 तक
और फिर ये ड्राइव करके कहाँ आ गए, मैरियट, और फिर 2:11 से ये ICI पे बैठे 2:19 तक। इतनी जानकारी तो हमारी मैडम तक को नहीं है दिल्ली में, हम क्या कर रहे हैं, जितना गूगल को पता है मेरे बारे में। ये तो लो, ये तो हो गया लोकेशन। वापस आओ, ये क्या लिखा है, कितनी फोटो खींचते हो, व्हाट्सएप पे डाउनलोड करते हो और सेव करते हो, और जवाब दीजिएगा आप लोग सब। कितने लोग हैं जिस समय इस समय आपकी फोटो गैलरी में आपका आधार और पैन कार्ड की फोटो पड़ी है। जय हिंद। सुनो, ऐप डाउनलोड किया मैंने, अंग्रेजी में कुछ बोलता है शुरू शुरू में, आई वांट टू एक्सेस ऑल योर फोटोज, आई वांट टू एक्सेस ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, आई वांट टू एक्सेस, हम कहते हैं ओके ओके अलाउ। अरे कहते हो नहीं कहते हो, और उसमें ऐप भी जाता हूँ, ऐप भी कितने प्यारे प्यारे। एक बार बताओ, कभी दवाई की दुकान पे जाके कहा कि लाल वाली गोली खिला, आज पीली वाली खाएंगे, पूछ रहा हूँ तुमसे, नहीं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, दवाई लेते हो, यस और नो, आंसर वेरी ऑनेस्टली, आई एम टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, अभी तक और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, नो 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 बॉस नो, वी आर टेक्नोलॉजी यूजर्स। कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फाइल फोल्डर वो नहीं रखना है, फोल्डर में नहीं, कहाँ रखोगे, ड्राइव में रखो, सबसे सेफ है, इंक्रिप्टेड है वो, गूगल क्लाउड में रखो अपने, या हिंदुस्तान में डिजी लॉकर यूज करो, और नहीं no, the photograph is your photo gallery which is syncing to cloud, boss. This is syncing cloud and sorry, drive and photo is separate, don't confuse. आपके फोन में फोटो गैलरी है, this is this, और इसके नीचे जो दिखा रहा है that is drive, ये जो नीचे दिखा रहा है ड्राइव, ये ड्राइव, दिस इज ड्राइव। मेरे पॉइंट को समझो, एक बीच में फ्रॉड ऐप आया था, ये लॉकडाउन में इसने सबको दुखी किया है, चाइना ने बदमाशी करी थी, इंस्टेंट लोन एप्स बनाए थे, याद आया, ब्लैकमेल करता था, लोग मरते थे, 350 लोगों ने आत्महत्या कर ली हिंदुस्तान में उन ऐप की वजह से। इंस्टेंट लोन दे देता था, लेकिन बदले में 3 चीज ले लेता था, फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और SMS, और वो परमिशन लेके लेता था आपसे, ओके ओके करते ना आप। आपकी फोटोज में क्या पर्सनल फोटोज होती हैं आजकल, है ना, अभी परसों एक केस में हमारे यहाँ सजा हुई है, पहली सजा है, जब 20 साल की सजा सुनाई है 22 साल के लड़के को, उसने एक लड़की की शादी खराब करी, उसको ब्लैकमेल किया उसकी प्राइवेट फोटोज के साथ, और ये पहला अब तक का केस है वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में, इसको सजा हुई है 20 साल की, जिसमें 20 साल की सजा हुई हो, वो बाद में बात करेंगे। मेरा पॉइंट ये कि क्या हमारे फोन में पर्सनल डेटा रहता है। सनी लियोनी का नाम सुने हैं क्या, हंसते क्यों, नाम से गलत बात है, सेलिब्रिटी है वो। सनी लियोनी जी का पैन कार्ड का मिसयूज किया एक ऐप पे, 2000 का फर्जी लोन दिया गया, कितना, उससे क्या हुआ उनका, सिविल खत्म। ये तो सनी लियोनी थी, तो सिविल ने सब ठीक करवा दिया, पुलिस में कंप्लेंट हो गई। मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये है यार, उसने अभी करियर शुरू किया है, और उसे पता चलता है कि somebody took a picture of a PAN card and उससे लोन लेके उसका सिविल खराब कर दिया। वो इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसको रेस्क्यू नहीं मिला है, सिविल इज डैमेज्ड। तो बॉस, अभी जो आप फ्रॉड में सुन रहे थे कि आजकल हैकर्स फेक अकाउंट्स खोल लेते हैं, फेक पैन कार्ड यूज कर लेते हैं, भारत सरकार ने आपके लिए एक वेबसाइट बना दी है, sancharsati.gov.in, क्या नाम है इसका। इससे 2 बातें फायदे होते हैं, एक तुम्हें ये पता चल सकता है कि तुम्हारे नाम पे कितने कनेक्शन चल रहे हैं, कोई अनवांटेड तो नहीं चल रहा है कि कल को पुलिस आया तुम्हारे घर पे कि ये नंबर आपके नाम से है, और दूसरा आप अपने चोरी किए हुए फोन को यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। क्या नाम है इसका, sancharsati.gov.in। इससे 2 फायदे हैं मुझे, एक, मैं अपने चोरी किए हुए फोन को ट्रैक कर सकता हूं, नंबर 1, नंबर 2, मैं ये जान सकता हूं कि मेरे नाम पे कितने कनेक्शन चल रहे हैं और क्या वो सब वाजिब है या नहीं, और अगर उस पर कोई भी नंबर ऐसा है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो मैं यहीं के यहीं ऑनलाइन उसको क्या कर सकता हूं, रिपोर्ट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। So my point coming back, should I store PAN cards and what you call them, Aadhaar cards in my photo gallery? Please don't. The best way is use DigiLocker. फोटोज तो दो, और अब एक बात अब तय हो गई, कोई फालतू ऐप फोन में नहीं जाएगा। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया ब्यूटी प्लस, उसमें ही फोटो बहुत सुंदर आती है, मैं सलमान खान लगता हूँ सेल्फी लेने के बाद,
चांसेस आ जाते मेरे चेहरे पे, ओए हेलो, वो एक ऐप डाउनलोड करने के चक्कर में मैंने पता नहीं क्या कर दिया। ये देखिए, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो खबर पढ़ लो अपनी आंखों से, सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे खबर की, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है भैया, पढ़ो। इन्फेक्टेड विद एंड्रॉइड मैलवेयर। इन सब ऐप से 10-10 लाख डाउनलोड है, 10 मिलियन डाउनलोड है, यानी कि 10 मिलियन फोन में ये मैलवेयर घुस चुका है। कॉम ऑडियो, बाउंस ब्रेकर, कॉम प्लेयर, एल प्ले, लोटे, मनी मैनेजर, भाई क्या क्या नाम है। कम से कम 60 ऐप पता चले, उनको फिर हटाया गया एंड्रॉइड से। तो भाई लिसन, एज प्रोफेशनल्स, इफ यू वांट टू डू हैंकी पैंकी, कीप 2 phones. One is my naughty phone. I do everything. In that, I have no personal ID, no net banking, no Google Pay, no UPI. This is my clean phone. Only genuine apps, limited apps, no messages, no hanky-panky, no फालतू video, no advertisement, no downloading फालतू, ना WhatsApp पे ना। और अभी आपने सुना स्टेगनोग्राफी, हम लोग फोटो में वायरस देख सकते हैं, मैलवेयर। और मैलवेयर क्या होगा वो, अब जो मैं क्राइम देख रहा हूँ ना, अभी जो केस में दिखाता हूँ, फोटो है मेरे पास केस की, ये रोता हुआ आया बेचारा, इसने फोन किया अस्पताल, राम भरोसे में, बहुत बड़े अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी, अपने बाप के अपॉइंटमेंट के लिए। अस्पताल ने कहा 2 दिन बाद फोन करिएगा। 10 मिनट बाद उसके पास एक इनकमिंग कॉल आया, उसने कहा राम भरोसे, बोले हाँ था। बोले आपने अपने पिताजी के लिए फोन किया था, बोले हाँ था। बोले अभी अभी कुछ बुकिंग कैंसिल हुई है, आपका अपॉइंटमेंट दे दे, बोले अरे आप दे दीजिए। तो बोले हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उस पर 10 रुपए यूपीआई से पे कर दीजिए आवेदन के लिए। बोले अच्छा साहब कर देता हूँ। बोले हमारा एक ऐप भेज रहे हैं, एपीके फाइल हॉस्पिटल बुकिंग का, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा साहब, उसने दोनों काम किए, इस लिंक पे उसने 10 रुपए जमा किए और इस एपीके फाइल को डाउनलोड किया। पहले तो ये जवाब दे दो कि एपीके का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। एप्लीकेशन तो हो गया ये, ठीक है, जिसे कहते हैं एंड्रॉइड पैकेज किट फाइल, तो बोलते हैं इसको। तो अगर आपको मुझसे कहा जी मेरे लिए ऐप बना दो, तो मैं ऐप बना के दूंगा, वो क्या दूंगा, एपीके फाइल। तुम उसे कैसे भेजोगे, गूगल को, गूगल उसकी क्या करेगा, जांच करने के बाद क्या डालेगा प्ले स्टोर पे, तब तुमको वहां प्ले स्टोर पे इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। अगर वो नहीं है तो मैं तुम्हें डायरेक्ट एपीके दे दूंगा, और अगर तुमने अपने फोन में डायरेक्ट एपीके डाल ली तो मतलब तुम गए। कई लोग ये गलती करते हैं, वो आजकल नए नए व्हाट्सएप आ गए, व्हाट्सएप ग्रीन, व्हाट्सएप ब्लू, व्हाट्सएप पर्पल। ओ हेलो, कौन यूज कर रहा है, ये सर मेरे पास आया था ये बात, ये आ चुका ये तुम्हें? वाला मेरे पास आया था, मैं अपने दादाजी के लिए कर रहा था वो लेजर से, बट मुझे याद है कि मैंने नहीं करा था, तो डेबिट कार्ड का पिन मांग रहा था, सारी चीज। ये रोता हुआ आया, इसके 3.5 लाख रुपए निकल गए, और माँ बाप की कसम खा के कह रहे हैं, बोले कर्नल साहब 15 ओटीपी आए, माँ बाप की कसम मैंने कोई ओटीपी किसी को नहीं बताया। मैंने फौरन इस फाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करी, मेरी जान निकल गई। एक्चुअली में ये फाइल मालूम है क्या थी, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। एक्चुअली में दिस फाइल वाज, आई शो यू, प्ले स्टोर पे दिखाता हूँ, ये प्ले स्टोर पे मिलती है, देखो आ गया, दिखता है नहीं? हाँ, ये रहा, ये था वो। पढ़िए जरा इसका नाम क्या है, इसकी पहली स्क्रीन पर इसने क्या लिखा है, ये फॉरवर्ड एनी, सुनो सुनो याद करो, बैंक का पासवर्ड भूल गए, ओटीपी, यूपीआई एक्टिवेट, ओटीपी, ऐड बेनिफिशियरी, ओटीपी, डेबिट कार्ड, ओटीपी, यस और नो। और सारे ओटीपी कहाँ आते हैं, एसएमएस पे। मेरे फोन में क्या पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल बुकिंग डॉट एपीके, उसका क्या मतलब था। तो क्या हैकर तुमसे ओटीपी पूछेगा, समझ में आ गया। इसीलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हम कोई फालतू ऐप डाउनलोड, कोई एपीके रिस्क नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, आप पूछिए। जैसे कभी शॉपिंग सेंटर पे वो मेंबर बना देते हो, नंबर पे करो आपको डिस्काउंट का मेल भेजते हैं, ऐसे में भेजते उसमें लिंक रहती है। थोड़े दिन पहले ये भारत सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है कि ये कानून बना दिया है कि अब कोई भी रिटेलर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग सकता। और मैंने आज तक नहीं दिया, मेरी तो बहस हो गई शॉपर स्टॉप पे, वो प्यारी सी आंटी वो खड़ी थी वहां पे बिलिंग काउंटर पे, बोली मुझसे ईमेल आईडी और फोन नंबर दे दो। मैंने कहा क्यों, बोले आपने जो 8,000 की शॉपिंग करी उस पर 80 पॉइंट मिलेंगे। मैंने फिर
बोले आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसमें 8 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मुझे मेरी कीमत 8 रुपए, मुझे पता ही था। रक्षित टंडन सोल्ड फॉर 8 रुपए। मैंने बच्चे एक बार बता दूं, मुझे थैले दे रही हूँ, कितने की देंगे? सिर्फ 15 रुपए पर बैग। वो जो सामान रखेगी थैले में 2 घंटे पड़ते होते, फ्री नहीं होते वो। मैंने सुन एक काम कर, अपना नंबर डाल दे, मेरे पॉइंट्स तू रख ले, मुझे थैला फ्री दे दे। मैंने अपना नंबर नहीं दिया आज तक, ना ये चायोस पे, ना बेरिस्टा पे। क्यों? क्योंकि यही तो वो डेटा है जो बिकता है और सर्कुलेट होता है, और आप क्या हो जाते हो? वल्नरेबल। और आपकी एक बड़ी गलती, ई टेलिंग। मैंने क्या वर्ड बोला? ई टेलिंग। ये ई टेलिंग करते समय अपनी प्राइमरी आईडी कभी मत दिया करो। तो मैंने एक फालतू बना रखी, उसका नाम है gmail.com। जो मानता है ना, gmail.com। हंसता भी है वो, और मुझे कोई शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि अभी आप चलो अपना इनबॉक्स खोलो, एक काम की मेल लिख गई, उबर, जोमेटो, स्विगी, भरा पड़ा, और पता चला उसमें तुम्हारी एक काम की मेल खत्म हो गई, तुम्हारे काम का नुकसान हो गया। जो तुम्हारी प्राइमरी वर्क आईडी है उसे कहीं किसी को मत दो। तो हमने बैंकिंग में भी यही सिखाता हूँ, 2 अकाउंट बना लिए साहब मैंने। एक जिसमें मेरी एफडी, सेविंग, इनकम सब आती है, उसमें कोई डेबिट कार्ड नहीं, कोई यूपीआई नहीं, कोई गूगल पे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नेट बैंकिंग ले रखा है। एक मेरा छोटा खाता है, उसका मिनिमम बैलेंस रहता है उसमें। अभी मेरे को 2 लाख रुपए की परचेसिंग करनी थी, बच्चे की फीस डालनी थी ऑनलाइन, 2 लाख रुपए। मैंने प्राइमरी अकाउंट से 2 लाख ट्रांसफर किए और वही नेट बैंकिंग से उस छोटे अकाउंट से पेमेंट कर दी। क्या एक्सपोज हुआ? छोटा अकाउंट। डेबिट कार्ड छोटा अकाउंट, यूपीआई छोटा अकाउंट, एफडी वैफडी बड़े अकाउंट में। नहीं समझ में आ रहा? क्यों? छोटा अकाउंट भी हो, तुम्हें अकाउंट खोलने के लिए क्रेडेंशियल्स तो देते ही हैं। हाँ, तो वो तो स्टोर उससे कोई रिस्क, हमारे पेमेंट का रिस्क खत्म हो गया ना। आज मिनिमाइज करो अपना रिस्क, और यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू मिनिमाइज रिस्क ऑन टुडेज इकोसिस्टम? यूपीआई का बेस्ट है। स्टॉप यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। if one is using bank apps and everything, if we keep on and all these purchasing apps and all, if we keep on Android or some other, हाँ, that's okay. so But then the ID should be different. So email ID which you are using on Apple is a totally different email ID for the iCloud, and the ID you are using on that Android for Zomato, Swiggy and Amazon is a different ID. Yes, it's okay. But ये सुनो, हर आदमी के लिए सोल्यूशन थोड़ी है कि वो 2-2 4-4 फोन लेके चलेगा। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, यूपीआई से। क्यों? उसमें कोई एक्सपोजर नहीं है। आप मुझे भी यूपीआई से पैसे दो, सिर्फ यूपीआई नंबर दिखेगा मुझे 16 डिजिट का, मुझे ये पता नहीं चलेगा कहां से आया और कहां गया। यदि मैं क्रेडिट कार्ड दूं, मेरा कार्ड नंबर गया, मेरा एक्सपायरी डेट गया, सीवीवी गया, सब चला गया, और भगवान ना करो आप कार्ड की फोटो लेकर रखी तो तुम्हें बिल्कुल ही गया। ये सुनो, ये आप लोगों ने कभी एयर इंडिया में ट्रैवल किया है? ये देखना, अभी एयर इंडिया के 54 लाख लोगों का डेटा चोरी हुआ, और डेटा जो गया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नाम और टिकट इंफॉर्मेशन। तो अब हैकर कैसे फोन करता है? रक्षित जी बोल रहे हैं, बोले हाँ आपने कल अहमदाबाद से इंदौर की फ्लाइट ली थी 8:10 पे, बोले हाँ आपने ये पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से की थी, बोले हाँ आप लकी विनर है, आपको 3 दिन की मॉलडीव में वो मिलती है स्टे फ्री। भैया इतनी निजी जानकारी बताने के बाद तो मुझे विश्वास लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन है। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड डेटा वेपनाइजेशन। तो डेटा से ही हमको काट मार रहा है। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप अपने जीमेल और उसके पासवर्ड अलग करना सीखो। दूसरा, अपने गूगल्स को खोलो और सिक्योरिटी में जाओ, और अब 2 सिक्योरिटी बहुत कंपलसरी हो गई है, एक डबल वेरिफिकेशन और एक पास की। ये 2 चीजें एनेबल कर दो। क्या क्या कहते हैं इसको? डबल वेरिफिकेशन और पास की। और नीचे इस पे नजर रखो, क्या कहते हैं इसको? डिवाइसेस। मेरे 3 डिवाइस दिखा रहा है यहाँ पे, मैकबुक, एंड्रॉइड फोन और आईफोन, ये तीनों मैं हूं। अब यहाँ चौथा दिखा दे वीवो, और मेरी जिंदगी में वीवो नहीं खरीदा आज तक। इसका मतलब मामला, मैं फौरन इसको क्लिक करूंगा वीवो को, और यहां से कह दूंगा साइन आउट। क्या कह दूंगा? तो हमेशा अपने डिवाइस पे। और ये तुम कैसे चेक कर सकते हो? सिंपल क्रोम पे जाओ, www.google.com/devices, एंटर मार दो, तुम्हारी पूरी जन्मपत्री आ जाएगी। और लोग क्या गलती करते हैं, सुनो, मेरा कल फोन रात को चोरी हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, नया खरीदा, काम शुरू कर दिया।
क्या पुराने फोन को यहां से रिमूव किया? नहीं किया, ये गलती है। इसे क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? डिवाइस मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? अभी जिसके लिए हम उठ के बाहर गए थे, आपने ध्यान दिया होगा, एक फोन आया था जब चेतन जी बोल रहे थे और हम बाहर चले गए। क्यों गए थे? वो घटना मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, छोटी सी घटना है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और छोटी सी कंपनी के साथ घटी है। जो मेरे पास केस आया है वो जूते के एक्सपोर्टर है। ये है छोटी सी कंपनी है, ONGC नाम सुना होगा आपने। इनका सिर्फ 197 करोड़ का फ्रॉड हुआ है उनकी। कितने का? हाँ, 197 करोड़। इन्होंने बिल भेजा था अरामको नाम की कंपनी को सऊदी अरब में अपनी पेमेंट के लिए। बिल भेजने वाले का नाम था DB पटेल। उनकी ईमेल आईडी थी patel_db@ongc.co.in। भगवान जाने क्या हुआ, हैकर ने मेल भेजी patel_db@ogmc.co.in, और मेल में लिखा हमारा खाता बैंक ऑडिट की वजह से बंद हो गया है, तो कृपया हमारा 197 करोड़ का पेमेंट हमारे मॉलडीव के खाते में, नए खाते में डाल दीजिए। उधर से अरविंद भाई ने डाल दिया। 3 दिन बाद टूटी अंग्रेजी में पटेल साहब ने फोन किया अरविंद साहब को, माय पेमेंट, बोले कर दी। बोले वेयर? बोले मॉलडीव। बोले वाई? बोले यू सेंड ईमेल। बोले आई सेंड नो मेल। तो टूटी अंग्रेजी। अब टाइम का डिफरेंस, लैंग्वेज का डिफरेंस, और जब उसने ध्यान से अरबी में मेल देखी तो जमीन खिसक गई। ONGC तो GNC। कुछ समझ आया कि नहीं? मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो अभी केस आया है, बहुत बड़े जूते के एक्सपोर्टर है, सिर्फ 50,000 यूरो की पेमेंट थी उनकी ओनली। कितनी? हाँ, जर्मनी के बायर को मेल भेजी थी, उनका नाम था info@rakshitandon.com। भगवान जाने हैकर ने बायर को मेल भेजी info@rakshitandon.com। एक को क्या कर दिया? अच्छा, हम लोग की आदतें बहुत बुरी है। हम लोग मेल्स कैसे चेक करते हैं? ऐसे। तो हम अभी मेल खोले लेते हैं आपकी आंखों के सामने। हमारे यहाँ मेल ऐसे आती है, ये देखिए, जैसे ये देखिए मेल। इसे बंद करो। हाँ, अब ये आया indore@icai.in। हमें क्या दिखाई देता है? डिस्प्ले नेम निधि चोपड़ा। ये निधि चोपड़ा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर की ईमेल आईडी नहीं दिखाई दे रही। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, हमें मंगलायतन दिखाई दे रहा है, अंदर की मेल आईडी यस और नो। और हम लोग तो फोन पे, ये तो लैपटॉप पे तो फिर भी माउस चल जाता है, फोन पे ना चलता माउस। फोन पे तो लिखा आता मेल फ्रॉम रक्षित टंडन, बस ईमेल आईडी दिखती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अटैक करते कैसे हैं? मेरे को पासवर्ड पता चल गया। कैसे? अमितेश का बास्केट में चोरी हुआ था भाई। हुआ था। मैं गया, जीमेल खोली, किसकी? अमितेश की। यहाँ पे ये क्या लिखा है छोटा सा? कभी खोला है किसी ने? सच बताना, कितनों ने खोला है? सबने? अच्छा, क्या होता है बताना? फॉरवर्ड करने के लिए और ना, ये सही बस एक ही सही चीज बोली उन्होंने। आर्टिकल की लोकेशन देखने के लिए वो तो एक्टिविटी करते हो आप। ये देखो, इसमें 2 चीजें दिखा रहा है मुझे। ये क्या लिखा है? फिल्टर। मेरे को हैकर के पासवर्ड पता था, मैं घुसा, मैंने सबसे पहले फिल्टर लगाया। कोई भी मेल सऊदी अरब से आया तो उसे क्या करते ना, डिलीट। तो क्या सऊदी अरब की मेल अब मेरे इनबॉक्स में आएगी? नहीं। फौरन गया, मैंने एक नया नाम बनाया, patel_db@ogmc.co.in। उसने क्या लगा दिया? फॉरवर्डर। तो अब जो भी मेल आएगी सऊदी अरब से, वो किस पर फॉरवर्ड हो जाएगी? OGMC वाले पे। जवाब कौन देगा? OGMC वाला। पूरी ट्रेन, पूरी इनवॉइस, सारा सब कुछ सेम। हाँ या ना? और हमने कभी खोल के देखी सेटिंग? हम तो बैठे मेल रिसीव कर रहे हैं, इनबॉक्स आउटबॉक्स, इनबॉक्स आउटबॉक्स खेल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं यार बाहर की कोई मेल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सेटिंग्स में क्या लगा था? बचने का तरीका, मैं पासवर्ड पे डिपेंड ही नहीं करता। मेरे सब अकाउंट्स पे डबल ऑथेंटिकेशन फिक्स्ड है, पास की फिक्स्ड है। और डेटा ब्रीच अगर हुआ है तो पासवर्ड किल करना सीखो। और हमारे यहाँ बताओ, चलो तुम भी लोग बताओगे, ATM का पिन डेट ऑफ बर्थ या एनिवर्सरी डेट पे बना हुआ है या ईयर ऑफ बर्थ पे बना हुआ है? व्हीकल नंबर ना, नंबर प्लेट आगे से भी दिखती है, पीछे से भी दिखती है। तो मैं, आप मेरा पॉइंट समझ गए।
You have to kill this method. Old methods of password have to be killed. हैकर को ये पता है, वो घूमता है इन्हीं के ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट। तो पासवर्ड्स को सिंक्रोनाइज करो। और एक वेबसाइट और सिखा रहे हैं आपको जिस पे आप अपडेटेड रहोगे, csk.gov.in। क्या नाम है इसका? साइबर स्वच्छ केंद्र.gov.in। इसकी दो खास बात है, लेटेस्ट टूल्स, लेटेस्ट अलर्ट्स और लेटेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगी आपको यहाँ पे। अब अलर्ट्स किसे कहते हैं, ये देखो, अलर्ट्स किसे कहते हैं। अभी एक नया रैंसमवेयर आया है, इसका नाम है ब्लडी रैंसमवेयर। अभी ये एंड्रॉइड में एक नया वायरस आया है, अभी एक नया मैलवेयर आया है। उसकी पूरी ज्योग्राफी आ जाएगी, वो कैसे पकड़ा जाएगा। थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन इसे हटाने का तरीका, इसकी कोडिंग सब दिया जाता है यहाँ पे। बट इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। हाँ, इसमें तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी चीज है, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर्स, फॉर मर्चेंट्स, फॉर लैपटॉप, फॉर डेस्कटॉप, फॉर ब्रॉडबैंड। सब क्या ब्रॉडबैंड लगा है? अभी जब जाओ तो अपने ब्रॉडबैंड का वो राउटर उठाना और उसको उल्टा करना। तो यूजर नेम पासवर्ड लिखा है तुम्हारे राउटर का, यूजर नेम में एडमिन, पासवर्ड है पासवर्ड। और जब वो आदमी लगाने आया था, उसको यो खड़े हो गए थे, उसे चाय भी पिलाई थी, वो बटन दबा के इंटरनेट से वापिस चला गया। वाईफाई का पासवर्ड मैंने डाला था, ICAI @ यस और नो। और सुनो यार, ये यूजर नेम पासवर्ड जो होता है ना राउटर वाला, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और इसके लिए तो वेबसाइट बन गई है, ये देखो, राउटर passwords.com। कौन से राउटर का चाहिए मुझे? D-Link का चाहिए। लो D-Link खोलो यहाँ पे, सुना है D-Link? मैंने कहा D-Link के सारे पासवर्ड ढूंढो, ये लो पूरा चार्ट आ गया विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। जितने भी मॉडल बने सबके यूजर नेम पासवर्ड आ गए। यस और नो? तो क्या हमें अपने डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड चेंज करने चाहिए? और एक और खूबसूरत चीज आजकल हमने अपनी जिंदगी में कर ली है, हमारे ना सबके वाईफाई कैमरे लगे हुए हैं, हम यहाँ से बैठे देख सकते हैं मेरे घर में क्या हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ, उसका एक स्टैटिक IP एड्रेस होता है सारी कंपनियों का। और मैं क्या बताऊं, मतलब मैं किसी का घर खोल के दिखा सकता हूँ आपको यहाँ। क्या बोलूं, लोग बदलते ही नहीं है। वो आता है लगाने वाला, हमारे यहाँ लगाता कौन है? जो आज से 10 साल पहले VCR का काम किया करते थे। हाँ, वो सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, लगा रहे हो। And listen, वो IP कैमरे का अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने नहीं बदला है और मैं बस आपके घर आया हूँ एज अ विजिटर, मेरी नजर पड़ी, अच्छा क्यूबो लगा हुआ है, क्यूबो, बस हो गया ना। तो ये जो गाड़ी में एंटरटेनमेंट सिस्टम है ना आजकल SUV में, उसके ब्लूटूथ का पासवर्ड होता है 0000। मैंने गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी करी आपके बगल में, मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन किया, देखा आपका कार एंटरटेनमेंट सिस्टम आता, मैंने पेयर किया और पेयर करके गंदा सा भोजपुरी गाना चला दिया बढ़िया वाला तेज आवाज में। तुम गाड़ी में बैठे हो, कुछ सोच रहे होगे, गाँव से डर जाओगे, हो जा रहा है गाड़ी में। अभी ये घटना घटी, सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये लगा है ना सामने, इसे स्मार्ट टीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जो वाईफाई है इसमें स्मार्ट टीवी। सारे स्मार्ट टीवी लगे हुए थे तुम्हारे मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक नई दिल्ली पे। करोड़ों की भीड़, सुनो, करोड़ों की भीड़ होती है, महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सारे टीवी के ऊपर विद लाउड साउंड कौन फिल्म चलने लगी। क्या चलने लगी? कौन फिल्म। एक बहुत बड़ा ऐसा ही सम्मेलन हो रहा था और यही ऑनलाइन सब खुला हुआ था, इतने सारे लोग बैठे थे। और चूंकि उसका वाईफाई पासवर्ड या जो भी कह लो, इसका जो सिग्नल है ये पीछे वाला, ये ब्लूटूथ वाला, ये किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया और उसके ऊपर एक बहुत गंदी चीज चला दी। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम सब के घरों में स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं आजकल, तो बी वेरी केयरफुल। जब आप उसमें जीमेल ID डलवाते हो ना, वो बहुत जरूरी है सेफ रखना उसको। जब आप एक स्मार्ट टीवी खरीदते हो, आजकल सारे ये एंड्रॉइड वाले आते हैं जिसमें इनबिल्ट यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब आता है। यू हैव टू पुट अ जीमेल ID। पहली गलती, हाथ जोड़ के अपनी पर्सनल जीमेल ID मत डालना। मेरा घर है, जिस दिन मेरे एक स्मार्ट टीवी आया था, मैंने उस दिन पहले लैपटॉप खोल के एक नई ईमेल ID बनाई, उसका नाम ही रखा होम टीवी करके, कुछ भी नाम रखा, उसको मैंने उसमें फीड किया। मैंने अपने फोन की पर्सनल जीमेल ID को फीड नहीं किया। और अगर कर दिया होता तो नुकसान क्या होता? मेरे बच्चे बैठ के मेरी फोटो गैलरी देख रहे हो और मेरी फोटो गैलरी में कोई अच्छी फोटो नहीं आती। अरे इसलिए नहीं आती कि मेरा काम ही ऐसा है भाई, क्राइम वाला काम है, मेरे को मर्डर पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी फोटो आती है आपका।
तो अब सोचो मेरा बच्चा देख रहे तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या जीमेल आईडी शेयर करनी चाहिए? नहीं, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपकी डिजिटल आइडेंटिटी। इसको हम लोगों ने क्या वर्ड दिया? डिजिटल आइडेंटिटी। अब बात करेंगे छोटी सी फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में, ठीक है ना? फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अंदर एक तो ये दो तरीके सिम वाला, जो कल घटना घटी 80 लाख वाली, वो सिम स्वैपिंग कहते हैं इस अपराध को। क्या कहते हैं? आपका सिम बंद, हैकर का सिम चालू, और जब तक आप समझ पाएंगे तब तक आपका बैंक खाली। ये बात सब लोग एग्री करेंगे कि आजकल हम लोगों के बैंक के ओटीपी दो जगह आते हैं, ईमेल पे और अभी आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा नितेश जी का ईमेल और मैडम का ईमेल 10 बार चोरी हो चुका है। कितनी बार? तो क्या हमें टाइम टू टाइम अपने ईमेल के पासवर्ड चेंज करने चाहिए? हाँ। ईमेल के पासवर्ड और बाकी सब दुनिया के पासवर्ड अलग अलग रखने चाहिए? हाँ। और कभी भी ये गलती मत करना कि किसी थर्ड पार्टी ऐप पे अपनी ईमेल से साइन इन करो। कैसे साइन इन करना चाहिए? मोबाइल नंबर और ओटीपी। मैं जोमेटो पे गया, जोमेटो बोला अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर ले, मैं तो कर लूं। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, मैं जीमेल को दे दूं तेरे को। आई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चीज अगर कर दी है तो उसमें डरने की बात नहीं है। तुम्हें गूगल ये ऑप्शन देता है, ये देखो, सिर्फ अपनी गूगल की सेटिंग्स खोलो। मैंने खोली सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाके खोला सुरक्षा, सुरक्षा में जाके नीचे आ जाओ, बिल्कुल लास्ट लाइन पे पढ़ो अंग्रेजी में क्या लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ो, बड़ा करके दिखा रहा हूं। क्या लिखा है ये? योर कनेक्शन टू थर्ड पार्टी। मैंने दिखाओ सारे कनेक्शन, बोला ये 12 ऐप तुम्हारा डेटा ले रहे हैं, कैनवा ले रहा है, कैनवा को देना है। मैंने क्लिक किया, मैंने कहा डिलीट। आर यू कंफर्मिंग? मैंने कहा हाँ। मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा मेरा और कैनवा का जीमेल से रिश्ता खत्म, यानी कि ये मेरे हाथ में है। किसके हाथ में? तो अगर तुम लोग ये गलती कर चुके हो तो आज तुम्हें गूगल ये ऑप्शन देता है भूलने का, लेकिन सुनो, यहाँ पे ये नजर रखना कि कोई ऐसा ऐप ना हो जो तुम्हारी कैटेगरी में बदमाश हो, जो मेरे जीमेल का डेटा का मिसयूज कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने आपको क्या सिखाया? गदा प्रसाद है email.com, ले ले, तू सब ले ले, सबको दे दो, ट्रू कॉलर को भी दे दो, किसी को भी दे दो, बट उस ईमेल से आई एम नॉट डूइंग बिजनेस, नो डीमैट अकाउंट्स, नो नेट बैंकिंग, नथिंग। इज दैट क्लियर? सीएस? हाँ सर, अगर कभी डीमैट अकाउंट रिप्लिकेट हो जाए और उससे पार्टनरिंग ट्रांजैक्शन भी हो जाए और देन जब आपको सेबी का नोटिस आए तब पता चले कि आपका डीमैट अकाउंट में ऐसा हो सकता है, तो फिर कहाँ कंप्लेन करें आप? पहला कंप्लेन तो सेबी को जाएगा और फिर साइबर क्राइम को जाएगा, दोनों को जाएगा। तो कंप्लेन भी कर दिया, बट देन आल्सो द सेबी एंड ईडी इज अगेंस्ट, पीछे ही पड़े हुए हैं आपके, तो फिर क्या तो फिर आप साइबर क्राइम से इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो डिजिटल एविडेंस से प्रूव करेंगे कि इन सब ट्रांसफर में आपका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि सेबी के पास और ये डीमैट होल्डर्स के पास सारे लॉग्स होते हैं। ऐसे केसेस हमने बहुत हैंडल किए हैं। आजकल ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के डीमैट अकाउंट खुल जाते हैं और उनका डीमैट आईडी पासवर्ड एनवलप पे लिखा होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर लिख के दे गई थी जब आई थी ना 50 कागज साइन कराने, तो उसके एक लिख के दे गई थी, वेलकम 1 2 3 वेलकम। और इतने बदमाश होते हैं कि तुम्हारी आईडी भी वो बना के जाते हैं, रक्षक_कोटक@yahoo.com, वो बना के, मेरी आईडी नहीं है ये। और ये किसके पास है आईडी पासवर्ड? एडवाइजर के पास। क्या मैं आपके शेयर ट्रेड कर सकता हूँ मेरा परमिशन दे? हाँ या ना? तो भैया सुनो, ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो सिर्फ साइबर क्राइम इसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है, टू प्रूव योर इनोसेंस और टू प्रूव कि वो पैसा गया कहाँ है। क्या हुआ है कि सर हमने तो पैसा भी नहीं लगाया, एक डीमैट अकाउंट ही रिप्लिकेट हुआ, उसी में पैसा भी उन्होंने नहीं लगाया, प्रॉफिट भी उन्होंने नहीं जनरेट किया, एंड दे आर ओनली टेकन है। बट उसके बाद भी आज तक हमने साइबर क्राइम पे भी कंप्लेन कर दिया, बट तो इसका मतलब ये है कि आपके क्रेडेंशियल से एक फेक डीमैट अकाउंट खुला है मेरे आईडी से। हाँ, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट, और ये वो ब्रोकर नहीं किया, इसका मतलब। We have complained to the broker also, we have complained तो आप हैकिंग की कंप्लेंट कराइए आपके साइबर में। और we have written, sir, रिटन नहीं, ऑफिशियल एफआईआर होनी चाहिए इसमें, ये प्रूव हो जाएगा कि वो फेक अकाउंट बना कहाँ से। FIR लिखने को ही तैयार नहीं है, पुलिस के पास। एफआईआर ऐसे लिखी जाएगी, देखो तुम कहीं मत जाओ, किसी मत जाओ, हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाओ, cybercrime.gov.in, ये हमारे राष्ट्रीय साइबर अपराध का रिपोर्टिंग पोर्टल है। इस पे रिपोर्ट साइबर क्राइम में जाओ, फाइनेंशियल फ्रॉड, अदर क्राइम, पूरी डिटेल है यहाँ पे। अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी डालो, अब ये पाबंद हो जाएंगे इस पे कार्रवाई करने के लिए और तुम सुरक्षित हो जाओगे कि हाँ तुमने कंप्लेंट कर दी। cybercrime.gov.in
gov.in, ये हमारी ऑफिशियल, आपको कहीं किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बैठे बैठे रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, ट्रेस करने के लिए हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, हमारे पास पावर्स होती है, इनके सर्वर्स ने, आईटी एक्ट ने हमें पावर दी है एजेंसीज को कि हम इनके सर्वर्स से लॉग्स निकालें और ये प्रूव करें कि वो डीमैट खाता जब क्रिएट हुआ तो आईपी एड्रेस किसका था, फोन नंबर किसका यूज हुआ। ये रहते हैं भोपाल में और वो रहता है इंदौर में, तो इन सारे फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं इसको हम लोग, फिंगर प्रिंटिंग। फिर ए पार्टी, बहुत सारी चीजें, मतलब हमारे पास जो प्लेथोरा होता है डेटा का, सीडीआर नाम की एक चीज होती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। अब आजकल एक नया हथियार आ गया है आईपीडीआर, आपने अपने फोन पे बैठ के क्या क्या इंटरनेट पे चलाया उसका पूरा लेखा जोखा देख सकता हूँ। आपने व्हाट्सएप पे कॉल करा किसी को तो किसको कॉल किया, उसका नंबर क्या है बी पार्टी का, अगर आपने इंटरनेट से व्हाट्सएप कॉल करी तो उसे, ये सारी चीजें हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ये पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ साइबर को दिया गया है और साइबर में भी इंस्पेक्टर और अबव को दिया गया है। हाँ लॉग आप सुन सकते हो फिर नहीं सुन रहे मुन्ने की, ये ऐसी कैसी बातें करो, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ वो मोबाइल कॉल को सुन सकते हैं और वो भी कब, स्पेशल परमिशन पे, वो भी कब, जब वो क्राइम इतना हीनियस हो, आप एक बहुत बड़े स्कैम में इन्वॉल्व हो, तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई आपके फोन सुन सकती है। लिसनिंग के लिए बड़ी स्पेशल परमिशन लगती है, इसे सर्वेलेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें अब एक नया फंडामेंटल राइट आ गया है, प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है आपका, तो दे हैव टू प्रूव द इंटेंट टू क्राइम। ऐसे ही नहीं कि मैं आईजीयू को अरे लाओ देखूंगा किससे बात कर रहे हैं, दो 7 साल की जेल है, 10 लाख रुपए जुर्माना है, हाँ ये भी गलत है। तो हाँ होता है ये हमारे ऑपरेशन में हम करते हैं कब, जब हमें मालूम है कि समवन इज इन्वॉल्व इन अ बिग मल्टी करोड़ स्कैम और समथिंग समथिंग। अब ये जीएसटी के पकड़े ना बढ़िया वाले, तुमने देखो क्या बता क्यों 10,000 करोड़ की जीएसटी फ्रॉड है, तो दिस इज सीरियस। खैर आईपी एड्रेस जो होता है वो सिस्टम से होता है, राउटर से होता है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन? तीन होते हैं आईपी एड्रेस, तो पहला वाला बोला सिस्टम से प्राइवेट आईपी कहते हैं, जो आईएसपी देता है उसे पब्लिक आईपी कहते हैं, और जो राउटर से क्रिएट होता है वो राउटर आईडी होती है, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मेरा सुनो, ये मेरा राउटर मान लो, इसमें मैंने केबल लगा दी एयरटेल की, तो इस राउटर से आईपी मिला हुआ है पब्लिक आईपी, उस आईपी पे मैंने वाईफाई लगा दिया, मेरे घर में 15 प्राणी है, 15 प्राणियों को सेम आईपी मिल गया, पब्लिक आईपी, लेकिन 15 का मैक और प्राइवेट आईपी अलग होगा। अभी जैसे मैं कनेक्टेड हूं इनके इंटरनेट से, ये वाईफाई से, तो मेरा एक प्राइवेट आईपी बन जाएगा इस लैपटॉप का 192.168.1 डॉट समथिंग, वो प्राइवेट है। लेकिन जो ये आईएसपी यूज कर रहे हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन सा यूज कर रहे हैं, तो एक सेकंड में पता चल जाएगा। मैंने मुझे कमांड दिया यहाँ पे, ये मुझे पता चल गया ये लोग भारतीय एयरटेल यूज कर रहे हैं इंदौर का, और इन सब का आईपी यही है इस समय। तो अगर तुम मेरे लैपटॉप का देखो, उसका देखो, इसका देखो, हम तीनों का यही होगा 100, 244, 204। अब ये ट्रेस करते हुए मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे मैंने इनका राउटर खोला, राउटर से पता चलेगा मैकबुक कौन सा है, वो एचपी कौन सा है और ये डेल किसका है, और इसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे तुम्हारे फोन का होता है उसे कहते हैं IMEI, हमारे इसको कहते हैं मैक, MAC। उससे मैं पता करूंगा कि इस पूरे क्राउड में वो लैपटॉप कौन सा है जिससे क्राइम हुआ है, समझेगा? अब इससे आगे मत पूछो, मीडिया क्लास इन्वेस्टिगेशन का हो, मैं ये सारी जानकारी पुलिस अधिकारियों को सिखाता हूँ। सीए क्या करेंगे, सीख आप कौन सी बात कुछ कौन लेके जा रहे हो विवेचना करने? हाँ भाई, Is it good to use firewall? yes, it is always advisable to have a good firewall, hardware or software. So forth is very good. Firewall will protect you from all, but then the person who's configuring your firewall should be intelligent. He should have blacklist and whitelist IP. He should protect you from China, Hong Kong, stuff like that. और ये जो मैंने साइट सिखाई ना, ये देखो CSK, इसमें हर रैंसमवेयर तक का आईपी होता है। जैसे मेरे को अभी अभी पता चला ब्लडी रैंसमवेयर, तो देखो नीचे इसमें लिखा आएगा कहीं पे कि ब्लडी इससे आता है। अब अगर मेरा फायरवॉल वाला ये दोनों आईपी एड्रेस फायरवॉल में डाल दे, तो क्या मेरे सिस्टम में कभी ब्लडी रैंसमवेयर आ पाएगा? मेरा फायरवॉल रोक देगा ना, तो हमें पता चल गया कि ये इस आईडी कार्ड, ये आईडी कार्ड का आदमी फ्रॉड है,
तो तुमने गेट पे आईडी कार्ड की फोटो भेज दी और तुम्हारा गेट कीपर चेक कर रहा हो ये फ्रॉड है, इसे बाहर निकालो, ऐसे अंदर मत आने दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माय प्रॉब्लम इन इंडिया है फायरवॉल खरीदा है, पैसा भी लगवा दिया कंपनी से, कौन कर रहे हैं वो, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, he should be strong enough to capture this data। तो हमारे पास इसको व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आईपीस कहते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो ये डेटा प्रोवाइड करती है, आपको एक एक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, सो दैट वी कैन कीप पुशिंग दैट डेटा। तो एंटीवायरस कौन सा अच्छा है? हिंदुस्तान में 3 चलाते हैं, क्विकली ले लो अच्छा है, नॉर्टन ले लो अच्छा है, मैकेफी ले लो अच्छा है। डिफेंडर इज नॉट टाइम, विल नॉट कमेंट। मुझसे प्रोडक्ट की बात करते हो वरना कहेंगे साहब रॉयल्टी ले रहे करते साहब। सर फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। पर आप उनको डिसेबल कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो और एंड्रॉइड में कौन सा बेस्ट ब्रांड है जो स्टॉक मतलब ताकि सिक्योरिटी बढ़े? यार ऐसे सवाल रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग, हां रिकॉर्डिंग बंद करो। ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए मेरा ही अकाउंट है, आप देख लीजिए, तो मेरे होंगे 15-20 हजार फॉलोअर, नहीं 40 हजार है, और ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है और वेरीफाइड अकाउंट है उस टाइम, ठीक। हाँ अब मेरे पास ये धमकी वाली मेल आई, मैंने क्या करा, इस लिंक को कॉपी किया, क्या किया, कॉपी। और सुनो, मैंने एक साइट सिखा रहा हूं तुम लोगों को, virustotal.com, क्या नाम है इसका, इसमें तुम फाइल की जांच कर सकते हो, यूआरएल की जांच कर सकते हो। मैं गया यूआरएल पे, मैंने पेस्ट किया और जैसे ही एंटर दबाया, इसने भाई साहब बताया इसमें 6 वायरस हैं, कितने, और वायरस का नाम बताया फिशिंग और मलेशियस। पैन कार्ड बनवाना है सीए साहब, कौन सी वेबसाइट पे जाओगे? एक मिनट रुको, सबसे यंगेस्ट सीए कौन बैठा है यहाँ, बिल्कुल वेरी जस्ट यंग, वेरी यंग, यंगेस्ट। मुझे पैन कार्ड बनवाना है, कौन सी वेबसाइट? एनएसडीएल से। तो एनएसडीएल क्या गूगल पे, क्रोम पे डालो, गूगल पे डालो आ जाएगी। एनएसडीएल की बेटी पहली गूगल वालों को, हाँ दामाद। अबे तो एनएसडीएल के आगे पीछे को बोलो, nsdl.com.in.gov.com.org। रक्षित टंडन को बुलाया या रक्षित गुप्ता को बुलाया, रक्षित शर्मा को बुलाया, ये तो डिसाइड करो। नहीं समझ में आया मेरा पॉइंट? सुनो, एक कितनी खतरनाक चीज हो रही है आजकल, ब्लैक हैट एसईओ, अंग्रेजी वर्ड है बड़ा खतरनाक। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 1 जून की कंप्लेंट है, बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है मसूरी की, उसका बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल है मसूरी। वो गर्मी छुट्टियां शुरू हो गई, नॉर्थ में गर्मी बढ़ गई, तो लोग कहाँ आते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल। तो गूगल पे डाला रूम्स रिजॉर्ट्स इन मसूरी, सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई। वेबसाइट पे एक यूपीआई नंबर दिया था, एक फोन नंबर दिया था, बात करी, बोला बहुत बढ़िया पैकेज दे दिया, उसने यूपीआई पे एडवांस ले लिया, पूरा परिवार होटल पहुंच गया। होटल गए, ये तो हमारी वेबसाइट ही लेकिन गूगल में सबसे ऊपर आई थी वो। 90% लोगों को वेबसाइट का नाम नहीं पता होता है। तो देखिए आज अपराधी हमारी इस बात का फायदा उठाता है और इसी को हमने नाम दे दिया फिशिंग। तो हमारे भाई साहब ने लिखा पैन कार्ड अप्लाई, लिखते ही सबसे ऊपर 3 वेबसाइट आ गई, PANcard.com, PANInd.com, ऑनलाइन PANcard.in। आप कितने प्यारे हैं, और इनका मतलब भारत, मेरा भारत मान, हाँ इन मतलब इंडिया होता है। बगल में देखो काले रंग से क्या लिखा है, छोटा छोटा विज्ञापन लिखा है, ये बेचारा एनएसडीएल सबसे नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि ये विज्ञापन नहीं करता, ये विज्ञापन समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो पासपोर्ट बनवाना था, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, गूगल में डाल देते हैं पासपोर्ट इंडिया, मैं ऑफिशियल वेबसाइट बोल रहा हूँ पासपोर्ट की, कितना बड़ा रेड कलर का विज्ञापन आया भगवान भारत सरकार का, अंग्रेजी पढ़ो क्या लिखी है, हमें सूचना मिली है कि ये फालतू वेबसाइट है, फ्रॉड। passport-seva.in, कितना प्यारा नाम है भाई। और यही नाम सुन रखा है, पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले भारत सरकार ने, passport-seva.in। क्या हम इस वेबसाइट पे जाएंगे? 100 बार जाएंगे। क्या ये असली है? और हमें असली पता है, हम कैसे पूछते हैं, बेटी है दामाद है। क्या मेरे पॉइंट को समझो, गूगल वो दिखाता है जो तुम
देखना चाहते हो? ये सुनो, क्या हमारे यहाँ लोगों को वेबसाइट पता है? चलो इसी से शुरू करते हैं। तुम लोगों का बैंक में खाता है सबका? कौन से बैंक में? SBI कौन बोला? वेबसाइट का नाम SBI.SBI है ना? हाँ डिसाइड करो आप। वो कह रहे कोडॉटिन, वो कह रहे कॉम, मैं कह रहा हूँ रक्षित टंडन, वो कह रहे रक्षित अग्रवाल, वो कह रहे रक्षित गुप्ता, किसी को बुला लो, एक ही बात है, सब एक से है। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये मैंने पकड़ा है। ये सुनो, ये वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग था। बम्बई बैठा हुआ था मैं VIP लाउंज में, IG साहब का फोन आया बिहार के, और ये था केस क्या था, ये था, पढ़ लो अपनी आंखों से। हाई कोर्ट की नकली वेबसाइट बना दी और सुनो, लाखों के टेंडर निकाल के लाखों लोगों को चूना लगा दिया। और सुनो, वेबसाइट का नाम क्या था? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम था पटना हाई कोर्ट .gov.in। हैकर ने बनाया पटना हाई कोर्ट .gov.in। क्या क्या है इसमें? और हमारी अंग्रेजी टीचर क्या पढ़ाती थी? फुल स्टॉप भी लगाओ तो नंबर नहीं करते। तो हमारे लिए डॉट की कोई है ना? हम लोग को गलत कह रहा हूँ क्या? कौन देखता है डॉट? कोई नहीं देखता है। और सुनो, हम लोग की अंग्रेजी बहुत बढ़िया है। मैं 10 कार्यक्रमों में जाता हूँ, 9 कार्यक्रम में हमारे में क्या लिखा होता है? रक्षित टॉन्डॉन। आई स्वेयर, फोटो दिखा सकता हूँ आपको। टॉन्डॉन कर देते हैं। हमारे में टॉन्डॉन कितने में मिल रहा है? 99 रुपए में मिल रहा है। हाँ, अभी लो, अभी खरीदोगे? आओ चलो खरीदते हैं। ये लो, गो डैडी। कहाँ चलेंगे? मैंने कहा मुझे खरीदना है रक्षितटॉन्डॉन.com। ले लो, 499 में मिलेगा। और हिंदुस्तान में आज भी आधे से ज्यादा लोग टंडन को टॉन्डॉन लिखते हैं। उनकी गलती नहीं है, अंग्रेजी हमारी बहुत अच्छी है और हमारी सारी अंग्रेजी हमें गूगल सिखाता है। एक हमारे विक्टिम है, यही वाला फ्रॉड कहलाता है कस्टमर केयर फ्रॉड। क्या कहलाता है? उन्होंने पेटीएम का कस्टमर केयर नंबर गूगल से ढूंढा, सबसे ऊपर जो नंबर आया उसको कॉल मिला दिया, और हमने जब ट्रू कॉलर पे ये नंबर चेक किया तो क्या लिखा आया? तो ये 10-12 घटनाएं घट गई एक एक करके। एक अंकल के 96 चले गए, एक अंकल के 2.5 लाख, आंटी के चले गए 95,000। स्विगी की हेल्पलाइन को कॉल किया था, 200 रुपए की पैंट ऑर्डर कर रही थी, 35 चले गए। अच्छा भाई साहब ऑनलाइन दारू खरीद रहे थे, 92 चले गए। हाँ, बाइंग एंड शॉप का नंबर गूगल से ढूंढा था, घर पे डिलीवरी आने वाली थी, ब्लैक लेबल की। कितने गए भाई साहब? 3 महीने तक मुझे दारू करेगी। मेरा पॉइंट सुनो, मेरा पॉइंट ये है, इन सब में कॉमन क्या है? नंबर कहाँ ढूंढा था? गूगल पे सबसे ऊपर आया, हमने तो उससे विश्वास कर लिया। तो दैट IQ is missing in cyber now. You don't identify whether the message is right. और सुनो, ये वाला केस शर्म की बात है ये। मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, अब तक कम से कम 10,000 आ चुके हैं मेरे पास, 7,000 करोड़ की फिगर आई है हमारे सामने। और ये केस है, देख लो अपनी आंखों से, देख लो, सिर्फ हेडलाइन पढ़ लो समझ जाओ। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT कंपनी में नौकरी करता है, 42 लाख रुपए चले गए। वर्क फ्रॉम होम, YouTube वीडियो लाइक करिए, पैसा कमाइए। कितने चले गए? टेलीग्राम पे लिंक आया था, पहले 1000 के 2000 हुए, 2000 के 4, 4 के 8, 8 के बाद पैसे लौटे नहीं। कितने गए? 42 लाख। अभी मेरे पास 2 करोड़ का आ चुका है। लालच कितनी बुरी चीज है। और ये कौन है आदमी? काम करता है, और वो क्या बन गया? IT स्कैम का शिकार बन गया। तो ये जो सोच है ना हम लोगों की, कि हम लोग साइबर को बहुत लाइटली लेते हैं, हम लोग मेल, स्पेलिंग, बटन चेक नहीं करते हैं। इस बेचारे बच्चे ने 13,000 रुपए दे दिए इंस्टाग्राम अकाउंट को। कितने फॉलोअर हैं? हमारी आदत होती है, ढाबा भी वही ढाबे पे रुकते हैं या 4 गाड़ियां खड़ी होती हैं। यहाँ 20,000 फॉलोअर है भाई साहब, 1 लाख का कैमरा 13,000 में दे रहा है, मैं क्यों नहीं खरीदूंगा भाई? उसने जैसे ही खरीदा उसको ब्लॉक कर दिया, पैसे गए। और जितने हम मेल्स बैठे, ध्यान से सुन ले, फीमेल्स की बात नहीं हो रही, मेल्स की। वीडियो कॉल आ रही है आजकल, बहुत बढ़िया आंटी की वीडियो कॉल आती है, जैसे उठाते हो वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, सामने होती है अश्लील तस्वीर, इधर होता है तुम्हारा चेहरा। उस रिकॉर्डिंग को एडिट करके तुम्हारी फोन बुक को रिटर्न किया जाता है, और वो फोन बुक एक लिंक से हैक होती है। और हम हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया फोन बुक बनाते हैं,
किसी की भी अभी फोन हैक करूंगा ना, फोन को बताऊंगा नहीं, पापा मम्मी छोटे चाचा बड़े चाचा दिल्ली वाले मौसा, आंसर भी यस और नो। और तुम लोग जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो अपने हाथ से परमिशन देते हो, किसकी? कॉन्टैक्ट्स की। तो अगर आपकी कॉन्टैक्ट्स मेरे पास आ जाए तो क्या मैं आपकी प्रोफाइलिंग कर सकता हूँ? और अगर आपकी प्राइवेट चीज मेरे हाथ में है तो क्या मैं आपको ब्लैकमेल करके कोई भी काम करा सकता हूँ? मैं फर्जी बैलेंस शीट पे साइन भी करवाऊंगा आपसे और आप करेंगे हाँ या ना? करो भैया कर लो। एक डीआरडीओ के आदमी को पकड़ा है मैंने अभी, साइंटिस्ट है बहुत बड़ा ये। इन भाई साहब ने पाकिस्तान को भारत सरकार की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी व्हाट्सएप कॉल पे। क्यों? क्योंकि कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा था वीडियो के लिए। तो आजकल ये पाकिस्तान बहुत कर रहे हैं, उन्होंने अपने ऐसा एजेंट बिठा के लड़कियां बना के खूबसूरत लड़की बना देते हैं उनको। मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पे, cute_girl_princess, और फोटो ऐसी दीपिका आंटी फेल हो जाती और मुझसे फ्लर्ट कर रही, हाय रक्षित हाउ आर यू, पान का पत्ता दे रही लाल कलर का। और अरे उसके मुआ मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने ना वो खोला अपना पीआईडी सिस्टम में, ट्रैक तो करूं क्या होता है। ट्रैक किया तो पता लगा 55 साल के रमेश बाबू गोरखपुर से। क्या ऑनलाइन आईडी में पता चलता है आप किससे बात कर रहे हो? ये स्कैम्स ट्यूब करने के तरीके हैं और ये विज्ञापन बनाना सब लिंक बेस्ड है, इसे क्लिक जैकिंग कहते हैं। अभी हमें पता चला कि हैकर्स का ग्रुप ने एक ऐसा वायरस बनाया जो आपका कैमरा और माइक हैक कर सकता है, और ये ट्रू है। हे सिरी, हे सिरी, हे सिरी, हे सिरी, एक हो गई। हे सिरी नहीं सुन रही इस समय। अभी मैं सिरी को ऑन करूँ कोई भी काम कर देगी मेरे लिए, किसी को भी फोन मिला देगी, मेरा बैलेंस बता देगी, सब कर देगी, सब कुछ पढ़ रही है, वो सब देख रही है। ये माइक और कैमरा कोई छोटी चीज नहीं है आज की तारीख में। इस तरह के मैसेजेस से बच के रहिए, केवाईसी और ये लिंक्स, बैंक की वेबसाइट्स, और ये आज रात तुम्हारी बिजली कट जाएगी, और बहुत आ रहे हैं ये। आजकल इनकम टैक्स का चल रहा है, लास्ट डेट है इनकम टैक्स और पैन को लिंक करने के लिए। बहुत, हाँ पैन और आधार को बहुत खतरनाक है वो। और ये क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा जाता है, आता नहीं है। और एक आजकल नया स्कैम चल रहा है, फेडेक्स कोरियर से फोन आएगा, डराएंगे आपको कि इसमें ड्रग्स मिल गई है, पुलिस की वेरिफिकेशन ये वो। दूसरा चल रहा है, आपने फेसबुक पे अपनी बेटी की फोटो डाली, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, बेटा कनाडा में पढ़ता है, रात को हिंदुस्तान का टाइम उनकी रात, आप पे फोन आएगा बेटे के नाम से रिश्तेदार पे, मैं फंस गया हूँ, जल्दी से 10 लाख रुपए ट्रांसफर करो। अभी मेरे पास एक रामपुर पुलिस का फोन आया था जब मैं होटल में था, जब मंदिर से लौटा हूँ, तो उनकी पूरी हेल्प करी है इस केस में, मैंने 10 लाख दे दिए उन्होंने। आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सोशल मीडिया से बहुत डेटा आजकल चुराया जा रहा है। ये देखिए कार्ड्स के साथ तो यार बहुत क्राइम हो रहे थे, डुप्लीकेट, क्लोन लोन, लेकिन भारत सरकार ने हमें एक बड़ा अच्छा वरदान दे दिया। ये वाले कार्ड बहुत खतरनाक है, देखो ये जेब में नहीं रखने चाहिए, हम हमेशा अलग वॉलेट में रखते हैं। ये कभी भी लेदर वॉलेट में मत रखना। RFID कार्ड, वो आया और मेरे हिप पॉकेट पे टच किया उसने, और लो पैसे निकल गए, और वो अखबार पड़ गया, देखो वहां पैसे आ गए मशीन में, नहीं समझ में आया। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा वरदान दे दिया 2020 में, अब तुम अपने मोबाइल ऐप से अपने कार्ड्स को ऑन और ऑफ कर सकते हो। सारे बैंक्स में कंपलसरी है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, अपने सारे कार्ड बंद रखो भैया। मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मेरे पास है अमेरिकन एक्सप्रेस, वहां जाऊंगा राउंड राउंड पे, वो 2 रुपए का लंगर देते हैं अरे मेरे को मैं गया मैंने कार्ड दिया, वो बड़ा स्मार्ट सा सूट पहन के अंकल बैठे हुए थे, तो बोले नहीं योर कार्ड इज नॉट वर्किंग, डिक्लाइन। एकदम से मैंने ऐसे किया है, मैंने भाई मैं वो गलती से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ तो मैंने अपना कार्ड बंद रखता हूँ। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, मैं आपको लाइव इसीलिए फोन कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं मेरा अभी मैं आपको अपना कार्ड और पिन दोनों दिए देता हूँ आप लोगों को, आप 1 रुपया निकाल के दिखा दो, जबकि मेरे कार्ड की वैल्यू है करीब 4 लाख रुपए होगी या 7 लाख रुपए होगी, पर मेरे कार्ड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने कुछ किया हुआ है अपने कार्ड के साथ। क्या किया हुआ है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे।
नहीं, ये 2020 में भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया था। आप क्यों नहीं रहे हैं? I don't know, it's not working. नहीं तो मैं अपनी स्क्रीन दिखाता आपको। अच्छा आ तो रहा था, सॉरी मैंने नहीं प्रेस किया होगा, अब आ जाएगा। नहीं आ रहा। I don't know, पता नहीं कुछ हो गया, इसकी केबल खराब हो गई। आप MX खोलो, MX में खोल के दिखाता हूँ यहीं से दूर से। मैंने अपना MX पे लॉगिन किया, MX किया, मैंने MX पे लॉगिन किया, अपना पासवर्ड डाला, कोई भी कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, सिक्योरिटी सेटिंग्स में गया। अब मेरी सिक्योरिटी सेटिंग्स में आप देखोगे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑन और ऑफ का, देख लो ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने सब ऑफ किया हुआ है, ऑनलाइन ऑफ, चिप ऑफ, कॉन्टैक्ट ऑफ। अब मुझे चिप से पेमेंट करनी है, मैंने इस चिप को बस ब्लू किया, काट दिया, पेमेंट हो गई, वापस आया, फिर ऑफ कर दिया। कितनी देर लगी ऑन ऑफ करने में? हाफ अ सेकंड। अब मान लो इस बीच में मेरा कार्ड किसी ने चोरी कर लिया, क्या वो 1 रुपया भी निकाल सकता है? नहीं समझ में आया। और ये 2020 में भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया था फॉर एवरी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, ये मेरा आईसीआईसीआई का ऐप है, मैंने अपना आईसीआईसीआई के ऐप पे लॉगिन किया, डेबिट और क्रेडिट दोनों में, इसे कहते हैं लॉक अनलॉक योर कार्ड। ये देखिए मैंने डेबिट कार्ड पे क्लिक किया, ये मेरा डेबिट कार्ड आ गया, आ गया। ये नीचे 4 बटन बने हुए हैं, 2 लाल है 2 ग्रे हैं, 2 लाल है 2 ग्रे है, यानी कि मैंने मर्चेंट बंद किया हुआ है, एटीएम बंद किया हुआ है, सिर्फ ऑनलाइन ऑन है और टच एंड पे ऑन है। अब चाहूं तो इसको भी क्या कर दूं ऑफ। तो अब अगर कोई हमारा कार्ड चोरी कर ले तो क्या पैसे निकाल सकता है? तो सीए भाई, हाँ टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वो टोकनाइजेशन उसके लिए जिसमें 300 रुपए महीने कटना, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, ये हुआ, तो अब हमने वो बंद कर दिया, कार्ड नहीं सेव कर सकता नेटफ्लिक्स वाला, तो हम उसे टोकनाइजेशन देते हैं और उसमें 2 बटन है, अप्रूव डिसअप्रूव। तुम जब तक अप्रूव रखोगे पैसे कटते रहेंगे, जितना तुम्हारा बनता है जाके टोकन को डिसअप्रूव कर देना। अब मुझे नेटफ्लिक्स को पैसे नहीं देने, तो वो कटेंगे नहीं ऑटोमेटिकली। ये तो बदमाशी होती थी कि तुम्हारे बेटे ने 13 साल की उम्र में स्पाइडरमैन का गेम खरीदा, 99 रुपए दिए, वो दो साल बाद भूल गया गेम, वो यूज भी नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में देखो तो वो 100 रुपए हर महीने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में हम 100 रुपए ध्यान ही नहीं देते, कहाँ देते हो बताओ? 1200 रुपए साल पे ध्यान दोगे? नहीं दोगे। अपना सब्सक्रिप्शन देखो, कार्ड में जाओ, टोकनाइजेशन में देखो, किन किन को अप्रूवल दे रखा है, उसको ऑफ कर दो। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल एक नया अपराध हमारे सामने आया है, वो बहुत खतरनाक है। नो कार्ड, नो बैंक, नो लिंक, नो ऐप, नो फोन कॉल, नथिंग, एसएमएस आया, पैसे निकल गए। कैसे? मैंने अभी 5 लोगों को पकड़ा, तो इनका जरा कहानी पढ़ रही, क्या किया इन पांचों ने रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से जाके फोटो कॉपी चुराई, फोटो कॉपी चुरा के उस पर अंगूठे के निशान को क्लोन किया और आधार नंबर की बेसिस पे लाखों रुपए निकाल दिए, 1 करोड़ रुपया निकाल दिया। AEPS कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? AEPS। AEPS का फुल फॉर्म क्या है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? इसके लिए सिर्फ हमें 3 चीजें चाहिए, बैंक का नाम, आधार नंबर और अंगूठा। और अभी याद है थोड़ी देर पहले हमने कौन सा बन गया अंगूठा। आधार तुम लोग अपने फोन में रखते हो, बांटते रहते हो सबको, हम नहीं बांटते आधार। हम क्या देते हैं, जहां जाते हैं 2 होटलों में 2 दिन में रुका, दोनों मैरियट में का फोटो आएगी, मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस दे दे, आधार नहीं दिया, नहीं दिया ड्राइविंग लाइसेंस। आधार में एक
सिस्टम पे आया था ना कि only वही यूज करो, मास्क का आधार। मैं तो कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के डिजी लॉकर है मेरे पास, बेस्ट आधार मास्क है मेरा, सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट दिखते हैं, आखिरी के पूरे अंक नहीं दिखते। अगर तुम्हारा पूरा आधार नंबर मेरे पास है और बैंक का नाम है, सिर्फ नाम, और क्या है अंगूठा फेविकॉल वाला, पैसे निकल सकते हैं। तो सुनिए एक अच्छी खबर, 1 अप्रैल को भारत सरकार ने इसकी कॉग्निजेंस ली और भारत सरकार ने, आरबीआई ने इससे पहले ले लिया। आरबीआई बोला अगर किसी भी पीड़ित के आधार से पैसे निकले तो वो पूरा पैसा बैंक वापस करेगा। कौन वापस करेगा? तो ये याद रखना। दूसरी बात, बैंक का भी नुकसान क्यों हो, तो 1 अप्रैल को भारत सरकार ने कानून बनाया, जिंदा अंगूठा काम करेगा। क्या काम करेगा? लाइव, वैसे से लाइव ब्लड सर्कुलेशन वाला। तो मेरा अंगूठा काटो और ले जाओ मशीन पर रख दो, काम नहीं करेगा। अभी तक कर रहा था, तभी वो सिलिकॉन वाले बन रहे थे, तभी अभी आदमी ने डेड बॉडी का अंगूठा लगा के पैसे निकाल दिए। अब नहीं करेगा वो काम। लेकिन इसमें एक दिक्कत है यार, हमारे पास 35 लाख मशीनें हैं, कितनी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, तो लॉजिस्टिकली 35 लाख मशीनों को अपडेट करने में टाइम लग सकता है, हाँ या ना? तो कैसे बचे? बड़ा आसान है, आपके पास एम आधार ऐप है क्या? है? किसके पास है? क्या है उसमें? देखा उसे? क्या है उसमें? और क्या है? ये वाली स्क्रीन देखी उसमें? क्या लिखा है नीचे? अंग्रेजी पढ़ो, क्या लिखा है? मैंने क्या कर दिया अपना बायोमेट्रिक? लॉक है। अब निकालो, मेरा अंगूठा काट के ले जाओ तो नहीं चलेगा, मेरे जिंदा अंगूठा भी लगवाओगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। क्यों? मैंने क्या कर दिया अपना बायोमेट्रिक लॉक। अब जब मुझे सिर्फ हिंदुस्तान में 2 जगह अंगूठों की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट वीजा या प्रॉपर्टी सेल परचेज, बाकी सब जगह ई केवाईसी होती है। कौन सी? मैं सिम खरीदने गया, अभी एक नई सिम खरीदी, हमको ये पुलिस का नंबर मिला अलग से, तो बोला अभी एक्टिवेट करनी है तो अंगूठा लगाओ, और ई केवाईसी कराओगे तो 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगी। मैंने साहब 24 घंटे में मेरी कोई सरकार गिरेगी नहीं, और ना व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का फोन आना है इसके, तो आराम से कर एक्टिवेट में 4 नंबर ऑलरेडी चल रहे हैं, मैं तो उन्हीं से दुखी हूँ, है ना? तो मैंने डिजिटल केवाईसी मतलब ये वाली केवाईसी नहीं कराई, तो मुझे अंगूठा अनलॉक करने की जरूरत। और अगर तुम्हें ये ऐप यूज नहीं करते हो तो आधार की वेबसाइट खोल दो भैया, वो तो बोल सकते हो, ये नहीं, इसमें हिंदी अंग्रेजी में चलेगा, और इसमें तुम्हें एक बटन दिखाई देगा वेबसाइट पे, आधार सर्विसेज, क्या कहते हैं इसको? आधार सर्विसेज में जाओ और उसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा? वहां तुमने क्या फ्रीज कर दिया? आ गया, ये देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है सबसे नीचे? एक बहुत सीरियस क्राइम हो रहा है वेटरन्स के साथ और रिटायर्ड पीपल के साथ, एनीबॉडी 65 और 70 प्लस इन योर फैमिली, हाथ जोड़ के विनती है आज ही घर जाके उनके तो बायोमेट्रिक लॉक करके रखो। जितने बड़े बुजुर्ग तुम्हारे घरों में, गाँव में, जहां जहां बैठे हैं, सबके क्या करा दो? बायोमेट्रिक लॉक करा दो प्लीज। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में मैक्सिमम लिमिट वन टाइम ट्रांजैक्शन की 10,000, तो 10-10 करके वो 10 दिन में निकाले तो अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। और सुनो, उसके मैसेज में लिखा आता है AEPS, तो अगर किसी के 10,000 रुपए निकले तो क्या वो उसी समय एम आधार पे जाके अपना अंगूठा लॉक कर सकता है? तुम्हारे पास मैसेज आया, तुम ट्रैवल कर रहे हो, कि तुम्हारे ATM से पैसा विड्रॉल हो रहा है, भाई हमारी लिमिट होती है सबकी, तो 24 घंटे की लिमिट ही तो निकाल सकता है एक बार में। मैंने फौरन क्या करा, अपना ऐप खोला और अपने कार्ड ब्लॉक कर दिए, बैंक को बाद में सूचित करूंगा, पुलिस को बाद में करूंगा, मैंने कार्ड ही ब्लॉक कर दिया मोबाइल से। अब क्या पैसा निकलेगा? ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन चीज है आपके लिए, और इसके लिए बड़ा आसान है, जब जाके आपको ये लॉक वाला बटन दबा। अच्छा, इसकी एक खासियत सुनो, जब फर्स्ट टाइम लॉक करोगे तो उसके बाद जब भी अनलॉक करोगे तो 10 मिनट बाद अपने आप लॉक हो जाएगा। ठीक समझा? तो अब ये नहीं है कि बार बार लॉग एक बार तुमने जिंदगी में फर्स्ट टाइम कर दिया, अब तुम गया रजिस्ट्री कराने, जब तुम घुस रहे हो तब तुमने क्या कर लिया? अनलॉक। जैसी रजिस्ट्री होगी फिर आ जाओ, ऐप को देखो भी मत, थोड़ी देर बाद देखोगे अपने आप लॉक हो गया। तो ये सब इसको कहते हैं
प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी, क्या कहते हैं इसको? इज दैट क्लियर? चलिए कोई सवाल पूछ रहा है पूछिए, मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिए दे रहा हूँ, उससे बात करना बहुत आसान है। ट्रू कॉलर और व्हाट्सएप ये कितने सेफ क्या कुछ क्या है तो क्या दिक्कत क्या है? ट्रू कॉलर ऑटोमेटिक सब मैसेज लेता है, इवन आपका ऑप्शन नहीं होता। तो वो अपने पास नहीं लेता है, वो सब रिमोटली आपके फोन पे करता है, वो फोन बुक भी आपकी फोन से लेके आप ही को नाम दिखाता है। वो हमने इनके साथ बहुत गहराई में काम किया है, और आप अगर अभी चलो आपने पूछा है तो मैं दिखा भी देता हूँ। अभी दिल्ली पुलिस ने इनके साथ शादी करी है बकायदा। हमारी ट्रू कॉलर से शादी हुई है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस, तो अगर दिल्ली पुलिस और ट्रू कॉलर शादी कर रहे हैं, तो ट्रू कॉलर अगर फेक होता तो दिल्ली पुलिस उनसे शादी करता? क्या लिखा है? तो यार हमने इनकी कंपनी और इनके ऐप को बहुत करीबी से देखा है, और मैंने 100 में से 99 अपराध बचाए यार। आज मेरे साथ होते हो मेरे साथ तो कौन क्या करेगा, डर हो जाता है। मेरे को फोन आ रहा था और देखिए इसमें ट्रू कॉलर ने हमें क्या बताया। क्या लिखा है नीचे? ट्रू कॉलर स्पैम लिखा आ रहा था, तो उठाऊंगा इसको। आईफोन में अगर वो लाइव नहीं बताता, वो बाद में आईफोन में दिक्कत है, वो आप उसके लिए एंड्रॉइड में तो लाइव दिखाता है। तो ये तो आईफोन की सिक्योरिटी है कि वो ट्रू कॉलर को भी मैसेज कलेक्ट करने देता है, तो आईफोन की ये सिक्योरिटी है। बट ट्रू कॉलर इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, बिकॉज ट्रू कॉलर इज, ये मैंने चेक करा है, दे डोंट पिक एनी डेटा फ्रॉम योर फोन टू देयर सर्वर, दे ओनली जस्ट ट्राई टू इंडेक्स आप ही के फोन से। उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया है वो। और अच्छी चीज क्या है कि वो जो कम्युनिटी ब्लॉकिंग है, जैसे उन्होंने एक नंबर फ्रेंड किया है, उन्होंने वो दिखाते हैं कि इसको 10,000 लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है ये फ्रॉड कॉल आ रहा है। वरना आप बताओ आपने उठा लिया, वो आपको कस्टमर केयर बन के बेवकूफ बना देगा। अच्छा ये जो सिम वाला था, ये ध्यान से सुनो, गलती से भी अगर किसी की सिम बंद हो जाए फॉर एनी रीजन, नेटवर्क ना आए और बाकी सबका आ रहा है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर और अपने बैंक को फ्रीज कराओ, और वर्ड यूज किया करो डेबिट फ्रीज। ब्लॉक वर्ड तो अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। तुम लोग कभी बैंक में तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, डोंट यूज द वर्ड मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, तो 2 मिनट में मैसेज आया एटीएम में निकल गया, मेरा एटीएम ब्लॉक कर दो, फिर 3 मिनट मैसेज आया एनईएफटी से निकल गए। तो भाई साहब इतने दरवाजे बने हुए हैं बैंक में, मैंने सिर्फ एक शब्द बोला बैंक को, डेबिट फ्रीज माय अकाउंट, दैट्स इट। अब जितने यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब बंद हो गए, कुछ नहीं निकलेगा पैसा। तो एक चीज। दूसरा, वैसे तो इतना आसान नहीं है ये क्राइम करना, अब पहले थोड़ा आसान था, अभी भी लोग बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ई सिम क्या मतलब होता है इसका। उसका फुल फॉर्म बता दो यार ई सिम का। इलेक्ट्रॉन लगा दिया वो। हाँ इलेक्ट्रॉनिक, अरे भाई इसका नाम है एम्बेडेड सिम, क्या बोलते हैं इसको। और ये क्यूआर कोड है, मेरे इसमें है, मेरे एप्पल में 2 सिम लगे हुए हैं, ये ई सिम है, इसमें एक वर्चुअल सिम है, मतलब फिजिकल सिम चिप लगी हुई है, दूसरी ई है, ई एम्बेडेड है। मैंने खरीदी, मालूम कैसे खरीदी? मैंने सिर्फ एक एसएमएस भेजा और उसका क्यूआर कोड मेरी मेल पे आया, और मैंने वो क्यूआर कोड अपने फोन से स्कैन किया, मेरी सिम एक्टिवेट हो गई। सुनिए, आदमी का फोन आया कि केवाईसी नहीं हुई है, केवाईसी होनी है अभी, तो सिम बंद हो रही है। अरे आप एक फ्रॉड कर रहे हो, अरे सर उनको रक्षित टंडन बोल लो, आपका घर का एड्रेस यही बोला, आपने सिम कार्ड यहाँ से खरीदा था, हाँ। आपने लास्ट 3 महीने के बिल मार्च अप्रैल जून ये जमा किए, इतने रुपए थे, हाँ। इस कार्ड नंबर से पे किए, हाँ। तो कंपनी से बोल रहे हैं सर कोविड चल रहा है तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग। तो बोले क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं कर रहा सर, हम कोई ओटीपी नहीं मांग रहे, हम फ्रॉड थोड़ी कर रहे हैं, कंपनी से बोल रहे हैं, आप मुझे एक एसएमएस भेज दीजिए आपकी ई केवाईसी हो जाएगी। बोले क्या एसएमएस भेजना, बोले लिखो ई सिम, आगे लिखो एयरटेल वेरिफिकेशन@gmail.com, और से 1 to 1 तो भेज दो, हो गई आपकी केवाईसी। मैंने ये मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया, 2 सेकंड बाद मेरा नेटवर्क चला गया, केवाईसी चल रही है, केवाईसी चल रही है, चल रही है, चल रही है। अगले दिन तक भी चली, कहो एयरटेल गया, बोले आपकी तो कभी सिम इशू हो गई। बोले कौन सी सिम, बोले एम्बेडेड सिम, ई सिम कहते हैं, आपने तो मैसेज भेजा था कंपनी को कि मेरा ये जीमेल आईडी पे भेज दो। बोले जी जीमेल आईडी मेरा थोड़ी, बोले तो हैकर का था, किसका था यार, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चेयरमैन इंदौर@gmail.com, तो क्या मैं चेयरमैन इंदौर बन जाऊंगा इससे?
जीमेल पे तो कोई भी किसी भी नाम से अकाउंट बना सकता है, हाँ या ना? और आपने उससे अपना QR कोड भेज दिया, आपका सिम बंद, हैकर का सिम चालू। और हमारा बैंक किसे पहचानता है? सिम हमें नहीं जानता। मैं खड़ा हूँ बैंक के सामने, तो कह रहा OTP बताइए। मतलब मैं जिंदा खड़ा हूँ सामने, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। हाँ ना, आपकी चीज की OTP आया, वो बताइए। तो अगर मेरा सिम कोई चुरा ले तो क्या वो मेरा पैसा निकाल सकता है? तो सुनिए, डबल ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉर्पोरेट्स में एक प्रैक्टिस कर रही है कि सिर्फ एक ही सिस्टम पे नेट बैंकिंग होगी, और जो OTP वाला फोन है वो बहुत सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या ये भी डेटा ब्रीचेस में आ रहा है कि वो जो अकाउंटेंट्स को पावर दे दी जाती है हैंडल करने की, तो वहां भी ब्रीचेस होते हैं। तो नेट बैंकिंग का अगर परमिशन है तो उसमें लिमिट्स लगाओ, कैपिंग कराओ। डबल ऑथराइजेशन होना चाहिए, डबल ऑथराइजेशन। मेरे यहाँ डबल ऑथराइजेशन पे चलता है सब कुछ। OTP आता है तो एक अलग OTP मेरे ईमेल पे आता है, जब तक दोनों मैच नहीं होते वो मुझे अंदर घुसने नहीं देता। तो अगर एक बार मेरा ईमेल हैक हुआ तो वो नहीं कर पाएगा, फोन हैक हुआ तो नहीं कर पाएगा, उसे दोनों चोरी करने पड़ेंगे तब वो कुछ कर सकता है, सोच सकता है। मुझे अभी तक यूज करने में आई बीन हैप्पी विद बोथ ICI एंड HDFC नाउ, दे आर मैच्योरिंग अ लॉट। अभी मैं वहां गया था एक छोटी सी वेकेशन पे, तो मैंने वहां UPI से इकट्ठा पेमेंट किया। मैंने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे सेंड हो गया, उसको दिखा दिया कि सेंड हो गया। उसी समय एक ऑटोमेटेड कॉल आई और उस पर ट्रू कॉलर वेरीफाइड लिख के आ रहा था, बैंक का नाम। मैंने स्पीड फोन को उठा लिया, तो आई एम ऑनेस्ट कस्टमर, मुझे मालूम था ये बैंक कुछ कह रहा है। मैंने उठाया, कंप्यूटर बोली you have made a payment of 56,700 rupees to so and so resorts. If it is you, press 1. If it is not you, press 2. अब जरा सोचो एक फ्रॉड एंगल, मैं 2 दबा के निकल लेता वहां से। वो तो टिक देख के और वो देख के उसने UPI नोट कर लिया, उसका हिसाब निकल गए। वो तो रिजॉर्ट वाला होता है। तो मैंने 1 दबाया तब अप्रूव हुआ। तो मैंने ये बात सिखाई ना रिसेप्शन पे, मैंने सुन, वरना अगर मैं बदमाश होता तो स्पीड फोन पे नहीं उठाता। तू अच्छा वेव जा रहे हैं, चेक आउट। आप समझ लो मेरा पॉइंट। लेकिन मुझे सिक्योरिटी क्या अच्छी लगी, मुझसे डबली वेरीफाई किया। क्यों? क्योंकि उसने आज तक नहीं देखा कि मेरे UPI पे इतना बड़ा अमाउंट, वो भी इस लोकेशन से जा रहा है। तो आजकल बैंक में भी AI लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? AI। वो देख रहा है अच्छी चीज, वो दिल्ली और NCR में UPI यूज करते थे, अचानक से हिमाचल कैसे पहुंच गया इनका फोन? फट से उसने फोन कर दिया। अगर यही 56,000 दिल्ली में दिए होते तो शायद फोन नहीं आता। क्रेडिट कार्ड ही देखना आता था, क्रेडिट कार्ड में आता था। ऐसा नहीं, अब हम लोगों ने कंपल्सरी कर दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि बैंकों को चपत लग रही है। हम लोग तो फ्रॉड रिपोर्ट कर देते हैं और बैंक ये लड़ते रहते हैं और बैंकों को ये पैसा, तो अब बैंक सतर्क हो गया। तो इसमें मैंने देखा है कि इनके सॉफ्टवेयर जो हमारे नेशनलाइज बैंक है, आई एम सॉरी टू से, एंड दे आर नॉट गेटिंग सो वेल अपडेटेड, तो वी आर वेरी स्कैरी विद देम। थोड़ा SBI आगे है इन चीजों में, SBI फिर भी ठीक काम कर रहा है। SBI को ATM में भी OTP लगा दिया है, तो आई लाइक इट, आई लाइक इट। ATM में हेलमेट्स लगा दिए, पहले हेलमेट्स नहीं थे, पहले लोगों को हाथ से दिखाना पड़ता था, हाथ ढक के पिन डालो। हाँ, इसी बात से लास्ट बात याद आई, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, पैकेट आते हैं, फेंकने से पहले उसके ऊपर के लेबल को डिस्ट्रॉय करिए। वो टेप से चिपका होता है, उससे QR कोड और तुम्हारी पूरी जन्म पत्री लिखी होती है शॉपिंग की। वो लेबल बाहर नहीं जाना चाहिए सड़क से कूड़े के अंदर। Am I clear on that? जो भी पैकेट पे लेबल आता है वो टेप से चिपका देते ऊपर, उसको डैमेज कर दो, श्रेडिंग कहते हैं, श्रेडिंग। चक्कू से काट दो, मतलब QR कोड वगैरह था, उसके बाद डिब्बा फेंको। बीच में केवल बोर्डिंग पास का भी बोर्डिंग पास भी फेंकनी चाहिए कभी, कागज में वो उसको प्रिंट करके डालो यार। तो ई-वॉलेट यूज कर रहे हैं, मेरे सारे बोर्डिंग पास मेरे वॉलेट में रहते हैं और डिजी यात्रा में रहते हैं। मैंने तो सब जमाने हो गए प्रिंट आउट निकलवाए। मैं तो कब से ये देखो, अभी भी मेरा ये इतने पता नहीं कितने बोर्डिंग पास पड़े देखना, ये देखना, सब बोर्डिंग पास ही बोर्डिंग पास है मेरे पास। जन्म पत्री है पूरी, आज की फ्लाइट का ये दिल्ली इंदौर, इंदौर दिल्ली, दिल्ली रायपुर, दिल्ली भोपाल, दिल्ली गुवाहाटी, सब। इतने सेव करने का कोई कारण है? इतने सेव किया कि मेरे ट्रैवल है आगे की भैया, आगे तो मेरा तो हाँ, मुझे लगा पुराने अपने पुरानों को मैं वो अच्छा एक्सपायर हो जाता है, इसकी खास बात है। इट गोज इन एक्सपायरी। ये जो अब है, जो आने वाली फ्लाइट है, तो मैं हमेशा उनको इसमें रखता हूँ से चलेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। लास्ट क्वेश्चन, मेरे को फ्लाइट पकड़नी था। हाँ, जो गैजेट्स में स्मार्ट टीवी में हम लोगों ने जो अपने प्राइमरी ईमेल डाल रखे चेंज करो यार, मुझे हटा दो, लॉग आउट करो, वहां से लॉग आउट कर लो, घर जाके आज एक नया जीमेल घर वालों के लिए बना देना। अपना प्राइवेट जीमेल अपने स्मार्ट टीवी में डालने का कोई तुक नहीं, कोई तुक नहीं।
तो या तो आपका बिल्कुल प्राइवेट टीवी है वो, ओनली यू आर वाचिंग इट एंड यू आर मैनेजिंग इट, नोबडी एल्स टचेस दैट टीवी, आई एम ओके विद इट. But if you have a family and you have many members in the family, once you put your personal Gmail, which is connected to your phone, the data is synchronized. आप बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास अभी एक मर्डर का केस आया हुआ है, डबल मर्डर हुआ है और उसमें फोरेंसिक जांच करनी है. उसने जो मेरे को इनपुट्स भेजे ना, वो अगर मेरे घर वाले देखें 3 दिन तक सोएंगे नहीं, नींद को तो उल्टी हो जाएगी. अब मेरे वो वीडियोस यहाँ पड़े हुए थे और मेरी जीमेल आईडी मेरे टीवी में सिंक है. बच्चे रिमोट से खेलते रहते हैं, उससे रिमोट पे गैलरी दब गया, गैलरी में वीडियो दब गया, प्ले दब गया. अब दो बताओ क्या देखेगा वो वहां से. दैट इज माई कंसर्न. प्राइवेसी इज माई कंसर्न. So putting your Gmail ID into your smart TV, I will not advise. Whenever I go home and I want to stream my phone, I connect it to the Bluetooth. अब मुझे अपना कुछ बढ़िया सा देखना अपने फोन से, तो मैं अपना बस ब्लूटूथ कनेक्ट करके कर लेता हूँ. यही स्मार्ट कार्स के साथ भी अब रूल हो गया है. अगर आपने अपने फोन को कार प्ले और एंड्रॉइड प्ले ऑटो से जोड़ रखा है, सो डोंट गिव योर कार टू. मैं अपने ड्राइवर को गाड़ी नहीं दे सकता. मैं सारे मैसेज फोटो सब देख रही हूँ, एंड्रॉइड ऑटो कर लिया सबने आजकल, वो अंग्रेजी गाड़ियां आती हैं, तो मैं ड्राइवर को भी नहीं देता हूँ. और जिस दिन मेरी गाड़ी सर्विस को जाती है, उस दिन मैं अपने फोन से उसको रिमूव करता हूँ, फॉरगेट करता हूँ, फिर कार भेजता हूँ. तब वहां से जब लौट के आती है, देन अगेन मैं उसको कॉन्फ़िगर करता हूँ. तो मेरी पर्सनल कार है जो मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता, छूता भी नहीं है कोई, ड्राइवर, बच्चा, बेटा, कोई नहीं. मैं तो ड्राइवर यूज ही नहीं करता इसी तरह से, क्योंकि मेरा तो सिस्टम भी बड़ा एडवांस है. उसमें मेरी जूम मीटिंग, मैसेजेस सब उसी में है. एप्पल कार प्ले है, बहुत बढ़िया. सीधी आंटी से बात करते रहते, वो सारे काम करती रहती है, गाड़ी चलाते रहो आराम से. हाँ, बहुत अच्छी बात है, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है. मोबाइल नंबर की डायरेक्टरी का भी कुछ चला था गवर्नमेंट का, सभी नंबर के साथ में उनके नाम भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो दिखेंगे. चल रहा है, इस पे हम लोग काम करें. बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा. So we are creating our own true caller. Government of India is creating our own true सर caller. एक 2 सेकंड, ये दिन भर ये एचडीएफसी वाला हमको लोन बांटते रहते हैं, इसका भी इलाज होगा नहीं होगा? नहीं, बस लो प्लीज. नहीं, लो मत की. Be very careful with the loan system. और इतने आने वाले लोन आने जैसा बिल्कुल आया, मैं कुछ नहीं कर सकता. आपकी गलती है, आपकी भी नहीं है, बैंकों की गलती है. ब्लॉक करो, ट्रू कॉलर यूज करो, डोंट एंटरटेन देम. और कभी अगर जरूरत हो ना पैसे की, गो टू द बैंक प्लीज. चीज कह करके लगाते हैं तो लेकिन हमारी लाइफ बहुत नेगेटिव है, क्योंकि एवरी टाइम आई गेट अ नेगेटिव कॉल एंड वर्किंग विद पुलिस. तो आपने देखा मेरे टॉक में जो ह्यूमर है, वो इसीलिए है क्योंकि अंदर बहुत कुछ है, डार्क बहुत है. तो जब हम अकेले होते हैं, ड्राइव कर होते हैं, 6 से 8 घंटे की ड्राइव होती है कभी कभी. जैसे मुझे पंचकुला जाता हूँ सीआईडी, 5 घंटे की ड्राइव है नोएडा से, अकेला जाता हूँ, सुबह गया शाम को वापस सीआईडी में काम करके. तो हम जा रहे थे, ये अम्बाला के पास एक मैडम का फोन आया, फिर क्या बोल रहे हैं एचडीएफसी बैंक से, आपका ये गाड़ी पे लोन चल रहा है. मैंने कहा हम आपको टॉप अप दे रहे हैं. ये बता तू है कहाँ यार, इतने दिन से पूछ रहा था. सुन, मैं अभी जा रहा हूँ अम्बाला, मैं पहुंच रहा हूँ चंडीगढ़ में, होटल बुक करा रहा हूँ, तू रात को मिल मेरे साथ. मैंने चैंपियन की बॉटल भी बना ली, बढ़िया वाली. फोन करता, वो दिन आज का दिन दिव्या का फोन नहीं. देखो भाई, ब्लॉक करो और डोंट एंटरटेन देम. द मोमेंट दे कॉल एंड से लोन कट. हमारी गलती क्या है, एंगेज करते हैं उनसे. और सुनो, एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ. पता तुम लोगों को, सबको पता है, सब स्मार्टफोन है तुम्हारे पास. सो आपने एयरटेल में कंप्लेन कराई है अपने डीएसएल, ठीक. आपके पास इनकमिंग कॉल आता है, आपकी कंप्लेन सॉल्व हो गई, आप लड़ने लगते हैं, कहाँ सॉल्व हुई, अभी तक कोई नहीं आया. ओह मैडम, आपकी ना गलती से कंप्लेन क्लोज हो गई थी, आप अपनी कंप्लेन ऑन कर दीजिए. आपको बस एक मिस कॉल देनी, मैं आपको ये 10 डिजिट का नंबर बोल रहा हूँ, और लिखिए अपने फोन पे, डायल करिए *4029812782142. बस डायल करके छोड़ दीजिए, आपकी अभी कंप्लेन एक्टिव हो जाएगी. हम बात करते करते बिजी रहते हैं, दिमाग में 10 चीजें चल रही होती, हमने ये डायल कर दिया. अब मुझे पहले तो ये बता दो, *402 का क्या मतलब है. आईडी कुछ रहता है. कॉल फॉरवर्डिंग कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? कॉल फॉरवर्डिंग. तुमने वो कोड दबा के अपनी कॉल क्या कर दी, और अब सुनो, तुम्हारे ओटीपी 2 तरीके से आते हैं आजकल, बाय टेक्स्ट, बाय कॉल. उसने फौरन तुम्हारा नंबर व्हाट्सएप पे डाला और बाय कॉल ओटीपी मंगा के तुम्हारा व्हाट्सएप टेक ओवर कर लिया. तुम व्हाट्सएप से लॉग आउट हो गए और तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट पे
इमरजेंसी है, भोपाल आई थी, गाड़ी खराब हो गई, 5,000 रुपए जल्दी से पेटीएम कर दो। तुम्हारे 2,500 कॉन्टैक्ट हो। जब से ये नई बीमारी हुई है ना हिंदुस्तान में, कोविड, सोशल डिस्टेंसिंग, इंसानों से बात मत करो। उठावनी भी ऑनलाइन होती है आजकल। RIP हाँ, गम ही नहीं करते, घर जाके RIP कर दो। पता चला मैंने उस मैसेज को इग्नोर नहीं किया, एक्नॉलेज किया, और 5,000 रुपए तुम्हारे 250 कॉन्टैक्ट ने डाल दिए। अब ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, 5 मांगू या 50 मांगू? अरे भाई साहब, हमारे ये साहब है, चेयरमैन साहब है, 50 मांगू, 50 दो। अब मैं मांगूंगा तो 2,000 दे दो, कोई बड़ी बात है, लेकिन सर मांगेंगे तो 50 तो दे ही देगा। हाँ है ना? आई बात समझ में? हेलो बोला पैसे नहीं, वो नहीं होता है, वो गलत खबर है। वो वाली खबर है कि जो कोविड में आई थी ना कि 100 पेपर नाक में डालो कोविड नहीं होगा। वो वाली है। वाली में 2,000 की नोट को मोदी जी ने चिट्ठी आज तक पुलिस की गाड़ियों में लगानी पाए, वो तुम सारी नोटों में लगाएंगे चिप। नहीं, वो गलत है, ये एक फेक न्यूज है। एक और आया था जो आपने वीडियो भी शायद देखा होगा, एक आदमी गाड़ी साफ कर रहा है और रेड कलर की आया, और सब लोगों ने माना और फॉरवर्ड किया। पढ़े लिखे आदमी ने मुझे फॉरवर्ड किया, मन आया मैं क्या बोलूं, मेरे को हिंदी याद आई थी मिर्जापुर वाली, पर मैंने बोला नहीं। एक बात सुनो, फास्टैग में पैसा होगा क्या होता है? It is linked to your bank when you travel and it is subscriber based. Only the toll ID जिसके थ्रू वो रीड होता है वो पैसा ले सकता है। ऐसे तो मैं अपनी जेब में रीडर ले लेके घूमूं। यार हिंदुस्तान में करोड़ों गाड़ियां, आदमी तो करोड़पति हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाया लोगों ने और बस। हाँ, अब जैसे आपको एक एक्सरसाइज करनी है तो मैं अभी करके दिखा देता हूँ। आप पे एप्पल किसी में या कोई भी फोन हो, लो ये एक ऐप आता है, आप लोगों के काम भी आएगा, आजकल बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं हिडन कैमरा डिटेक्टर। भाई साहब फ्लाइट नहीं सुनी मेरे को गाड़ी से छोड़वा। मेरा कल सुबह CID में लेक्चर है। ये देखो, ये हिडन कैमरा डिटेक्टर है। आप वो फोन बंद कर दो यार, ये बंद है इनका फोन ना। ये देखो, मैंने इस पे स्टार्ट किया डिटेक्शन, IR डिटेक्शन। आपको पिंक लाइट दिख रही है? यस, फ्लैश होती हुई। ये इनका कैमरा है, फोटो खींच रहा है ये। मतलब ये बंद फोन भी चलता रहता है तो इसका कैमरा चलता रहता है। ये देखो IR डिटेक्टर है, ये इनका कैमरा है। ये लाइट ब्लिंक हो रही है, इंफ्रारेड स्कैनर है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं मालूम है? अभी हमने एक आदमी पकड़ा, गंदा आदमी, उसने नहीं यार शादीशुदा उसकी बेटी है, कितने 40 साल का है, बहुत मारा उसको। हमने क्या किया, उसने हमारी बच्चियां जो जाती है हॉस्टल में PG में, उनके बाथरूम में कैमरे लगाते हैं। ये चेन्नई का केस है। तो अब मैं बच्चों को सिखाता हूँ, बच्चियों को खासतौर से, कि भैया ये ऐप रखा करो, 2 जगह यूज किया करो। तो ये होटल अगर तुम जाते हो, छोटे होटल वाले, ये नॉट प्लीज मैरियट टाइप, और यू गो टू शोरूम्स, यू गो टू चेंजिंग रूम्स, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वहां पे। तो आई ऑलवेज टेल माय बच्चा कि भैया ये खिलौना ले लो जेम्स बॉन्ड वाला, वहां जाके स्कैनिंग कर रहे हैं, देख कैंसर है मेरा तुम गया वहां। और ये मैंने साउंड बंद कर रखी है फोन की, वरना ये बीप भी करता है। तो यार ये फ्री एप्स हैं, ये डाल दो। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये था, आपने क्या देखा कि मैंने फोन ऑन देन आल्सो क्लिकिंग पिक्चर। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्मार्टफोन्स को हम लोगों ने आर्मी एयरफोर्स में बैन कर रखा है, आप लेके नहीं जा सकते। मैं भी गया था डिफेंस हेडक्वार्टर, मेरे सारे फोन लैपटॉप रखा लिया, मैं छोटा वाला ले जाने दिया उन्होंने, तो ये ले जाओ तुम। और ये सारे एप्पल मैकबुक सब रखवा लिए, लॉकर दे दिया छोटा सा लेड का, उसमें रखवा दिया। फिर एक फोन और था, वो कहा यार देखना, तो मेरे को याद ही नहीं। Thank you very much, sir, for insightful session. I try to make it very simple and try to give it very informative so that जितने पॉइंट्स मैंने बताए ये आप लोगों में स्प्रेड करें और दूसरे लोग बने, और आपने एक अलर्टनेस आएगी है कोई whenever you keep playing